Great, welcome everyone. Welcome to Healing Circle Talks. Healing Circles are safe havens. They are built on the foundation of kindness and respect. We all agree to listen to each other with compassion and curiosity. We honor each other's unique ways of healing and don't presume to advise or fix or try to save each other. We hold all the stories shared in the circle within us, and we trust each one of us has guidance we need within us and rely on the power of silence to access it. So, welcome once again. आज हमारे साथ में है कृष्णा एंड शी इज़ गोइंग टू शेयर उनका हीलिंग जर्नी कैसा था. चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर हैं एंड आई एम शी इज़ एन इंस्पिरेशन. आई एम अ बिग फैन ऑफ हर जर्नी. जैसे उन्होंने अपनी जर्नी को एक पॉजिटिव तरीके से लिया और आज वो बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही हैं. सो Krishna says, I had cancer, but cancer never had me. Krishna Mistry was diagnosed with Ewing sarcoma at the age of 12. After surgery to remove the tumor, she underwent 9 cycles of chemotherapy and 1 radiotherapy. Doctor used to call her the miracle baby, as they were so astonished and happy with her recovery in all aspects. That's really great. She is an early childhood educator now. She advises all the patients not to worry. This is just a phase of life. It's unpredictable and it's not your fault that it has happened to you. Just be positive. That's really great, Krishna, your words and जो आप दूसरों को गाइड करते हो. बिकॉज जब कैंसर होता है तो काफ़ी हम सब डर जाते हैं और नहीं पता होता है कि क्या करना है. सो आपने उससे यू कम आउट ऑफ इट एंड नाउ यू आर गाइडिंग अदर्स कि ठीक है, पॉजिटिव रहना है और विल कम आउट ऑफ इट. सो आई एम श्योर आप उस वक्त यू जस्ट ओके, तो आपकी फैमिली का सबका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा होगा इससे इस जर्नी को क्रॉस करने में. Right. So, आपसे आई ऑल्सो हैव विद मी जस्टिना. शी इज co-host for today's circle and I'll request Justina to take it forward from here. Hi Justina. Yeah. Sure, ma'am. So thank you for joining, Krishna, ma'am. It's a pleasure meeting you and having you here with us. So, as Dimple ma'am gave a brief introduction about your cancer journey, so could you please share us what were the symptoms and how did the cancer get diagnosed in the beginning? Right. So, सॉरी कृष्णा, जस्ट वन रिक्वेस्ट. हम लोग इस सर्कल को जितना पॉसिबल है उतना हिंदी में रखेंगे क्योंकि ज्यादातर लोग इजीली उसे समझ पाते हैं. तो कोशिश करिएगा. आप जस्टिना आप भी, कृष्णा आप भी, जितना हो सके हिंदी में बात करें. थैंक यू. sure, I'll try my best. Okay. So, like as she said, मैं 12 साल की थी जब मुझे हुआ था, and I was leading a complete एक normal लड़की की तरह मेरी लाइफ चल रही थी. At that time हम लोग नैरोबी केन्या में रहते थे. So वही कंट्री में मैं बड़ी हुई थी. जब मैं 6 महीने की थी मेरे पेरेंट्स उधर शिफ्ट हो गए थे फॉर वर्क पर्पसेस एंड ग्रोथ पर्पसेस. So I remember it was the year 2002 and मैं क्लास 6 में आई थी. So केन्या में एकेडमिक ईयर जनवरी में स्टार्ट होता है. So जब नैरोबी में बच्चे क्लास 6 में आते हैं तो दे आर वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स देयर ऑलमोस्ट एंडिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड वो लोग सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं. So that began with so much of excitement, so much of क्या बोलते हैं, इतनी पॉजिटिविटी से हम लोग ने 2002 को वेलकम किया था. एंड मी, माय सिस्टर एंड इवन लाइक माय फ्रेंड्स, वी ऑल वर सो एक्साइटेड. हम लोग शॉर्ट लिस्ट करते थे कि कौन सी सेकेंडरी स्कूल में जाएंगे. लाइक इट्स कॉल्ड हाई स्कूल से नैरोबी सेकेंडरी स्कूल. एंड एवरीथिंग वाज गोइंग सो वेल, सब अच्छा जा रहा था. एंड वो ईयर में जब मेरी मिड टर्म एग्जाम्स हुई थी, सो आई स्कोर्ड हाईएस्ट ऑफ ऑल माय classes. So मुझे academically life was going well, like family support was also going well. Everything was going fine until one day मैं आई घर पे with a very severe headache. And the headache was also very abnormal क्योंकि it was just like one side of my head that was paining. तो मेरी मॉम को स्टार्टिंग में लगा कि शायद it could be signs of sinus because both my parents have sinus.
तो उनको लगा होगा कि शायद इट वाज गेटिंग वेरी कोल्ड इन नेरोबी, एंड प्लस मेरे स्विमिंग क्लासेस भी बढ़ गए थे बिकॉज मैं इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रही थी. सो दे थॉट दैट मे बी ऑल ऑफ दिस accumulation की वजह से शायद हेड पेन हो रहा हो. एंड इट वाज लाइक माय फर्स्ट एवर हेडेक. उसके पहले आई हैव नेवर एक्सपीरियंस दिस हेड पेन. तो माय मॉम first day she gave me mild headache की medicine and I was put to sleep. फिर नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से आई तो वापस आई वाज कंप्लेनिंग ऑफ द हेडेक. तो तब मेरी मॉम को इंट्यूट हुआ, शी फेल्ट दैट समथिंग इज नॉट राइट अबाउट माय हेडेक. तो उन्होंने बोला कि चल मैं तुझे मालिश करके देती हूँ. शी गेव मी अ हेड मसाज और फिर बाम मसाज कर रहे थे. तो एट दैट टाइम उनको पता चला that there was a small little swelling on the right side of the below my temples, on the right below temple. तो उन्होंने like it's a very weird place to get a swelling because if कोई bang head होता है तो swelling इधर होती है. like to get a swelling here is very abnormal and मेरी mom को वो टाइम से लगा दैट समथिंग इज नॉट राइट. एंड नेक्स्ट डे इमिजिएटली हम लोग डॉक्टर के पास गए एंड वी मेट आवर नॉर्मल पीडियाट्रिशियन जिसके पास हम जाते थे एंड ही सजेस्टेड अस टू मीट अ न्यूरोफिजिशियन. फिर न्यूरोफिजिशियन ने भी देखा एंड it all started from there के they also found the swelling to be something different. तो वो लोग ने तब बोला था कि शायद क्लॉट हो सकता है या maybe some small thing would have happened. So to ease my mom's intuition and fear हम लोग ने CT scan करवाया था. So when the CT scan was done it was confirmed to be a tumor, but all of this I was unaware of. मुझे सिर्फ पता था कि इधर थोड़ा सा swelling है, उसके लिए हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं. But after the CT scan reports came, what ahead was being discussed, nothing was disclosed to me because मैं 12 साल की थी and my mom did not want to instill that fear in me from the beginning. तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ I remember visiting multiple doctors in Nairobi and ultimately the solution was a surgery. So वो टाइम पे my mom was alone, we were just alone in Nairobi and all our relatives were in India. So then one of my mom's friend ने suggest किया कि it's better you go to Mumbai, उधर भी equally ही सारे अच्छे hospitals है and along with medical आपको family support भी मिल जाएगा. So it would be helpful. So that's why we then moved to Mumbai without taking a second opinion or anything. हम लोग ने immediately tickets book की. So my mother, my brother who was just I think 3 or 4 years old और मैं, हम तीनों immediately मुंबई लैंड हो गए. माई सिस्टर वॉज इन नेरोबी बिकॉज उसको उसकी टर्मिनल एग्जाम देनी थी. सो आई मिस्ड दैट एग्जाम एंड वी केम टू मुंबई. एंड मुंबई आने के बाद हम लोग ने वापस हॉस्पिटल विजिट्स रन किए एंड फाइनली वी डिसाइडेड वन हॉस्पिटल जहाँ पे हम न्यूरोसर्जन से मिले थे. सो एट that hospital gave my mother very positive vibes and feel. So she said that ये hospital best है मेरे लिए. And before the night before the surgery जब मैं admit हुई थी hospital में, मेरी mom ने आके she sat with me and उन्होंने सिर्फ plain words में मुझे बोला कि see you have a swelling on your head and doctors are just going to do a small surgery so they will remove your hair. So are you ready for it? And I was like, yeah, I'm ready for it. मुझे जल्दी निकाल के I want to go back to Nairobi because I was still excited about high school and everything. So I wanted this phase to just get over fast. But little did we know that something really big was awaiting us after the surgery. So the surgery was done 12th March 2002. So this was not an ordinary day because ये दिन महाशिवरात्रि भी थी साथ. It was an auspicious day plus my surgery, so everything came together on one day. And why I'm about Shiv? So coma
to my bone. आपने कोई आपने कोई कॉर्मोबिडिटीज जैसे होता है ना हाइपरटेंशन या फिर ऐसे कुछ आपको हुआ था कैंसर जर्नी के टाइम? So as I said कि मेरी मॉम ने मुझे कुछ भी नहीं बताया था. Even after the surgery, when the tumor was tested to be malignant, I was not told that I have cancer and I needed to be, I had to undergo cancer treatment. So after the surgery, I was in the hospital, and जब मैं हॉस्पिटल में थी एक्चुअली तभी कीमो स्टार्ट करवा दिया था, बिकॉज जैसे ही मैलिग्नेंट स्टेटस आया था हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट का, so the doctor planned the entire treatment, and when I was still in the hospital वो फेज स्टार्ट कर दिया था. So after I was discharged and मैं जब घर वापस आई तो my mom, when I was calm and composed, उस दिन she told me that see Krishna, the surgery is done, but ये जो था तुम्हें जो थोड़ा सा swelling था, she didn't even use the word tumor at that time. So she was like, she chose technically how to address a 12-year-old child, और उस तरह से मुझे पूरा समझाया था कि क्या हुआ था. So she told me कि the swelling has been removed, it was attached on a bone, so that's why this entire bone has been left. तो मुझे mirror दिखाया था, and she showed me exactly what has been removed. फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि सी सर्जरी के बाद दो थोड़े बहुत जर्म्स जो वो स्वेलिंग का था वो रह गया है, लाइक इट कांट बी सीन, एंड डॉक्टर्स इतना परफेक्टली लाइक दे डोंट हैव लाइक दैट परफेक्शन आई. सो द डॉक्टर्स आर लाइक कि अगर कोई जर्म्स या समथिंग हैज बीन लेफ्ट तो उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे. सो द ट्रीटमेंट इज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम एंड वी हैव टू स्टे बैक इन मुंबई. एंड वो टाइम पे the first concern that I had, not of my health, not of anything else, it was what about my school? मैं स्कूल कैसे जाऊंगी? मैं I have to complete my 6th standard and go to high school. So at that time, that was like my mom was like, okay, now how do I explain to her that chemotherapy के time पे I'll have to miss my school and everything. So वो time पे I remember मेरी mom मुझे मेरे neurosurgeon के पास लेके गए थे, and my mother told that she's now waiting to go back to school. अभी कैसे, how should we address her and everything. तो वो टाइम पे डॉक्टर ने मुझे बुलाया. remember like he made me sit next to him and he asked me, so Krishna, how are you feeling? I'm like, good, अच्छा है. And उन्होंने बोला कि so what's your concern? And I'm like, I want to go back to school, I have to give my terminal exam which I have left, and I need to complete my studies. तो फिर उन्होंने भी मुझे same explain किया कि see, we have to treat you for the surgery, and he said that you will have to stay in India, but we can assure you कि आप इंडिया की स्कूल में जाओगे. So he said that you will have to miss some days of school, but on the remaining days, when on your non-chemo days, when you're not taking the treatment, you can go to school. So I was leading a complete normal life. हाँ, जो भी सब ट्रीटमेंट के रिक्वायरमेंट्स थे, लाइक डाइटरी and everything, that was taken care of, but otherwise I don't remember any day where I was living like a patient. So मैं कीमो से घर भी आती थी, like I used to go in the morning at 6 and come back at night, like I say around 8 o'clock. तो वो टाइम पे भी मेरे नाना मुझे सोने नहीं देते थे. He was like, you're normal, you're not a patient, तू सिर्फ ट्रीटमेंट ले रही है, दवाई ले रही है, IV से, that's it. So at home, at every place was very positive for me. Nobody treated me like a patient, so I never knew what I was battling with at that phase, वो time पे. So मैं डांस करती थी, मैं नीचे खेलने जाती थी, I used to play with my siblings. Yeah, there would be some days जहाँ पे ट्रीटमेंट की वजह से थोड़ी बहुत issues होती थी, like vomiting होती थी, या I used to get a lot of constipation issues, तो वो भी manageable हो जाता था with medicines and everything. So my 1 year of like, honestly speaking, एक तो मुझे मुंबई बहुत ही पसंद था. So I took it very positively that I'm getting a chance to live in Mumbai with my nana nani, mama mami, and that was
the entire excitement that was about. So I don't remember any sad days of my life. Yeah, I mean, if you take this story from my parents' perspective, obviously they had a lot of worries and a lot of questions and a lot of things behind them. But from my perspective, my life was just like a normal life at that time. तो मैम आपके परिवार में और किसी को कैंसर का कोई हिस्ट्री था और किसी को था Mm. या So फिर आप ही पहले थे? नो वी हम लोग का है कैंसर का हिस्ट्री. सो मेरी जो मॉम से छोटी बहन थी उनको भी कैंसर था. एंड बिकॉज इट हैड हैपेंड टू हर इन 1991 में. सो व्हेन माय मॉम मूव टू नैरोबी, वो टाइम पे उनको हो गया था एंड वी लॉस्ट हर एक्चुअली. सो दैट वाज द फर्स्ट. एंड after I was diagnosed, my nanny was also diagnosed with breast cancer. So somewhere underline there is a history of cancer in my family. ओके मैम, तो आप बता सकते हैं आपका कौन सा ट्रीटमेंट हुआ था कैंसर के टाइम पे? Okay, so I underwent 9 cycles of chemotherapy. मुझे 9 cycles chemo की दी थी and 1 cycle of radiation. So I think 32 या 42 days का कुछ था radiation cycle. Um, that was the treatment. So it took 1 साल लगा था for the treatment to get over. So it's my surgery happened in March 2020. April से I started chemo. In between I took a break because वो time पे I was like mentally थोड़ा सा affect हो गई थी. I was away from my father. तो वो time पे in between we went back to Nairobi so that I could reunite with him. And after that, like I मुझे समझ आ गया था कि okay, this is how our life is going to be. So I was waiting like 9 cycles chemo की हो जाए. So luckily within 1 year everything was done. 2003 March तक मेरा last chemo हो गया था. And after that we moved back to Nairobi. ओके मैम, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पर जो भी हैंड ये कर रहे हैं वो डिस्कशन हम इस सेशन के बाद करेंगे एक साथ. तो अभी आप हैंड रेज मत करिए. थैंक यू. तो ओके मैम, तो आप बहुत छोटी थी, तो उस टाइम पे ये सब कीमो इट्स वेरी पेनफुल. तो आप उस टाइम पे आपने मेंटली कैसे कोप अप किया? So actually in the hospital I was the worst patient. मैं बहुत ही like I was very stubborn. मैं initial chemos were really hard for me also, for nurses also to give to me. So initially like I used to scream and cry and पूरा onco का जो department था वो मैं सिर पे ले लेती थी. It was difficult, but then धीरे धीरे when I was at the hospital, वो time पे I didn't like it. Like initially the chemo was given through my veins, like direct veins से IV से देते थे. So हाथ सूज जाता था, fingers सब black हो जाती थी. So initially, yeah, I had to undergo a lot of pain. होता था. I used to cry. घर आके भी मैं रोती थी. But at home, it was like सारे relatives होते थे who would like wait. Like the moment I would come from the hospital, everybody was like waiting कि कब मेरा कहाँ से mood divert करे. So yeah, hospital में थी. I would cry. बहुत pain होता था. फिर I think after 3 chemo cycles, port insertion किया था because my veins were swelling very badly and बहुत ही I used to be very thin, so हाथ सूज जाता था. So at that time, port insertion के बाद chemos used to be less painful and symptoms भी like vomiting होता था. As I said, constipation भी हो गया था एक बार बहुत ही. तो medications होती थी. I used to even cry while taking medicines. But I'm telling you now, it was a phase where before, like अगर दवाई देने का time होता था तो my mama was like the rescuer for my mom. He would
कुछ ना कुछ डाइवर्ट कर करके ही वुड लाइक क्या बोलते कन्विंस मी टू टेक द मेडिसिन। फिर मेरी मामी होती थी, सो शी वुड ऑलवेज प्ले विद अस। एंड वो टाइम पे माय मॉम गॉट ऑलमोस्ट कितने सारे बोर्ड गेम्स और dolls and everything she got, so she's like not even a single second should I sit idle। तो या तो एंड वो टाइम पे स्कूल भी जाते थे, सो हिंदी वाज अ न्यू सब्जेक्ट फॉर अस। तो घर पे जब होते थे तो क ख ग सीखते थे, एवरीथिंग लाइक द स्कूल वेयर आई यूज्ड टू गो टू वाज एन एसएससी बोर्ड, सो मराठी भी था। So then, my mama used to teach us Marathi and Hindi. So at home, there was no space for me to cry or, to vent out the pain, because वो pain जो था वो positive way में निकलवाते थे, like by playing a game or diverting my mind। तो वो टाइम पे मेरी फैमिली ने मेरे सारे फेवरेट मूवीज साथ में देखते थे, सो they would always do things like back end पे I don't know कैसे वो लोग प्लानिंग करके मुझे पूरा डाइवर्ट करते थे। So I had issues only initially, but later on the doctors knew कि ये medicine से मुझे ये react हो रहा है, so in that way like my diet and everything was made alignment कर दिया था, so then I was not having much issues। ओके मैम। तो इस कैंसर जर्नी में आपका कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हुआ था? जैसे आपने कोई नया डाइट प्लान या फिर कोई न्यू हॉबीज ऐसे कुछ? Not really। हाँ मतलब सी व्हेन आई वाज हैविंग कीमो, जब मेरा चालू था, तो ऑन माय कीमो डेज डॉक्टर ने बोला था कि रॉ फ्रूट्स है, रॉ वेजिटेबल्स है, वो सब नहीं खाना था। फिर अगर मैं लाइक बिस्किट खाती हूँ तो इफ आई ओपन द पैकेट वंस, तो आई शुड एदर फिनिश द एंटायर पैकेट या फिर वो खा नहीं सकती थी। सो दैट वाज देयर फॉर दैट 1 year। फिर जब हम लोग वापस गए आफ्टर माय ट्रीटमेंट वाज डन, initially like bahar ka khana I was avoiding so that I don't get any infection, because platelet count sab gir gaya tha mera and my WBCs are always on the lower side। So then like eating outside food was banned for a few months you can say, and eating ghar ka khana। So when we went back to school, hamari full day ki school hoti thi from 7 to 4। So my mom used to send like hot lunch school mein, so that I don't eat subah ka packed khana। So and that was only for 1 year। After that I recovered so well that the doctors are like, now you don't need us, like you've completely recovered। So not really, then I was leading like a complete normal life in 2004 August mein। So kya tha कि I had to come up yearly for follow up, so coming every year, flight cost and everything, so my parents decided कि हम लोग मुंबई ही शिफ्ट हो जाते हैं so that we can continue our education। So that's why in 2004 we finally moved to Mumbai। So since then I don't have much issues, yeah, but later on after I hit my puberty, वो time पे I started having all hormonal issues। So वो time पे yeah, after that I had to actually control my diet and follow a specific lifestyle। ओके मैम। सो आपका क्या टॉप 3 लर्निंग्स होगा इस जर्नी में? So if I have to say, like अगर मैं बोलूँ तो I learned many things much later in life। So I मुझे कब पता चला था that I'm a cancer survivor, उसकी भी एक बहुत ही यूनिक स्टोरी है। तो मैं क्लास 8 में थी एंड एक बार लाइक इट वाज बायोलॉजी का सब्जेक्ट पीरियड चालू था एंड आवर टीचर केम लेट। So I was just reading through the chapters, और biology was my favorite subject। तो मैं पढ़ रही थी और जेनेटिक्स हम लोग पढ़ने वाले थे। सो आई रिमेम्बर वो टाइम पे मैंने एक छोटा सा डू यू नो बॉक्सेस होते हैं टेक्स्ट बुक में, वो मैं पढ़ रही थी एंड उसमें लिखा था कि कीमोथेरेपी इज गिवन टू कैंसर पेशेंट्स करके, ऐसा आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट दिस वाज रिटन इन दैट डू यू नो बॉक्स। तो बायोलॉजी मेरा लास्ट पीरियड था स्कूल में। आई रिमेम्बर टेक्स्ट बुक को लाइक वो पेज को मैंने ऐसे फिंगर से पकड़ के रखा था एंड मैं घर गई
and my mom was making lunch. She's like, chalo jaldi change karke lunch kha lo. And I told her, I was still standing, and my mom is like kya hua? And I showed her the page like aisa khul ke, and I'm like, did I have cancer? And she's like, what happened? I'm like, see what's written on this page. So she's like, okay. तो वो time पे उनको लगा कि okay, now I think it's time to tell her. So वो time पे मेरी mom ने मुझे बोला कि see actually तू 12 साल की थी, so that's why we did not want to panic you or scare you कि you have cancer. Then she explained to me पूरा कि जो तेरा tumor था वो malignant था, so that's why we had to give you chemo and radiation. So after that, I realized that, oh, I'm a cancer survivor. And learnings happened after I started facing rejections for marriage. So cancer was never an obstacle in my academics. मैंने 10th clear कर दिया था, 12th clear कर दिया था. I graduated, I did my masters, I did a PG diploma in counseling psychology. So all academics was never a hindrance. But जब marriage का my parents started looking for proposals, वो time पे I used to tell my parents, like being from a human development field, मैम हम लोग ने पढ़ा था कि whatever medical history you have, you should always reveal it to the person you are looking for marriage. तो मैंने मेरी mom को बोला कि I just want to tell them the truth. So whenever I would tell the guys that, see, I'm a cancer survivor, that's why I have a lag in my academics and everything. तो वो time पे they would after they would go back and call आता था मेरी parents को कि ना बोला था. So that was actually the reality check for me that hit me at that time, that okay, so now this is how the society reacts to cancer. And वो time पे I was already like 10 years हो गए थे वो बात को, and I'm leading a complete normal life. So my learnings were like कि हम जो perceive करते हैं society को, like they are all good and everything is fine. So that time I realized that not everybody is open-minded, and that was a time when actual reality check of the world hit me very hard, I would say. तो मैम आप क्या मैसेज देना चाहते हो कैंसर पेशेंट्स और केयर गिवर्स के लिए जो आपको सुन रहे हैं? My message to all cancer patients and even survivors would be, जो मैंने पहले भी बताया था, that cancer is not something in your hands. It happens because of some medical reason जो भी है. So it is not your fault, first of all, आपको cancer हुआ. And my message would just be that be positive. मैंने जब बचपन में कैंसर को फेस किया था, I was very positive. My family were very positive. They all just told, like, everything was positive. So just be positive. It is a phase of life. You have to overcome it. And when you're positive, you get the strength. So जो भी सब चल रहा है, just be positive. You'll gain the strength and do what you like. Honestly speaking, आज मेरा, I think I've been rejected almost 7 times. I am now 32 years old and I'm the eldest in my family, but still I have no regrets कि मेरी शादी नहीं हुई है. I have more things, better things to focus on, and that's why since 2020 I've been working on spreading my message to everyone. So life is crazy, things happen, but that doesn't mean that we have to stop. अगर मेरे पेरेंट्स ने वो टाइम पे थिंक किया होता कि अरे बाप रे, like her life is finished, तो मैं I don't even think 10th standard भी clear कर पाती. So just be positive. I know it's very difficult to be positive. मेरी mom मुझे एक ही बात बोलती है कि the only place where we can get positivity is to do meditation. So either do it भगवान के सामने, भगवान का नाम लेके you can meditate, or however whichever spirituality you believe in, and whichever things that give you a positivity. आज भी अगर like I see my friends getting married somewhere, I also feel यार काश मेरी भी शादी हुई होती. So I divert my mind. I do a lot of artwork. I do a lot of other things. So just be positive and you will overcome. It's just a phase of life. Believe me, वो 1 साल
हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट था, बट आफ्टर दैट लाइफ वाज ऑल गोइंग अपहिल. सो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग, एंड इट विल ऑल गेट वेल. तो मैम आपका वो पूरा जो कैंसर जर्नी है, अगर आपको वो एक सेंटेंस में बताना है तो वो आप क्या होगा वो? That's something very hard. आई डोंट नो क्या हो सकता है वन लाइनर में अगर बोले तो. आई थिंक everything that happens, it happens to make us stronger. I think cancer has made me the strong person I am. अगर मैं like rewind back करके, if I see myself before cancer, I was a very I was a introvert. I'm still one, but I'm overcoming that. I was not so strong. Like लोगों के सामने face करना was not a very easy thing for me to do. So जो भी, I think, yeah, strength is one word I would say. Justina, you're on mute. या सो थैंक यू मैम, आपने अपना जर्नी शेयर करने के लिए, एंड इट वाज रियली इंस्पायरिंग. आप बहुत छोटी थी जब ये हुआ, और आपने तब भी बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रगल्स थे, और आपने वो सब ऑब्स्टिकल्स आपने वो ओवरकम किया, और आप अभी एक सक्सेसफुल पोजीशन में हो. तो या इट वाज रियली इंस्पायरिंग. ओवर टू यू मैम, डिम्पल मैम. Thank you so much, and thank you, Krishna, for sharing your journey. बहुत ही inspiring है. I mean, your journey itself, and आपकी फैमिली में उसने उस वक्त आपको नहीं बताया क्योंकि आप बहुत छोटे थे. I mean, 12 साल की उम्र में कुछ समझ में नहीं आता है कि कैंसर होता क्या है. बट जब आपको समझ में आया, उन्होंने आपको बताया. I mean, hats off to your family, जिन्होंने सब कुछ आपके लिए किया, और आज आप हमारे साथ में हैं. That itself shows that how much efforts and what journey they might have gone through. So really salute to them. And आपने जिस तरीके से अपना जर्नी शेयर किया कृष्णा में, आपने इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में बात किया, क्योंकि मोस्टली कैंसर पेशेंट्स इन इश्यूज से निकलते हैं. मैंने बहुत डिफरेंट तरीके के रिलेशंस देखी है. पहले तो कैंसर ट्रीटमेंट का ही बहुत ज्यादा फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, बहुत कुछ रहता है. मतलब पूरा फैमिली का कंडीशन चेंज हो जाता है जब कैंसर होता है. तब उसके बाद में इफ यू ऑलरेडी हैव अ लाइफ पार्टनर, तो हमारे लिए गो टू पर्सन वही होता है कि नाउ नो मैटर व्हाट हैपेंस, एटलीस्ट आई हैव अ हस्बैंड और अ वाइफ और व्हाटएवर विद मी, जो मेरे साथ में हमेशा रहने वाले हैं और मेरा ध्यान रखने वाले हैं. ऑलरेडी जब कैंसर पेशेंट इस जर्नी से निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपनी फैमिली पे बर्डन है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है. बट उनको ऐसा लगता है कि they have to take care of so many things, अपनी पढ़ाई का और शादी का और मेडिसिन और खाना, सब कुछ चेंज हो जाता है, राइट. सो एंड उसके मैंने काफी रिलेशंस को ब्रेक होते हुए भी देखा है आफ्टर कैंसर गेटिंग डायग्नोज्ड. एंड जो आपने बताया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो यंग सर्वाइवर्स फेस करते हैं. जबकि ऐसा, I mean, the way science says that 5 साल का जो विंडो होता है, if you have crossed that, then you are completely safe. So कहने में obviously किसको कब क्या होना है कुछ कह नहीं सकते हैं, but then that's how the people's mind work at times. So thank you for being an inspiration and sharing it so openly, because और भी काफी लोग हैं जो similar situation से निकलते हैं, and definitely they would connect with you कि हाँ हम लोग अकेले नहीं हैं, there are many others. And आई थिंक टाइम के साथ में चीजें चेंज होगी डेफिनेटली, जितना अवेयरनेस स्प्रेड होगा इसके बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आजकल तो मतलब अवेयरनेस ही नहीं है कैंसर के बारे में, राइट. सो मेरे काफी सारे अभी भी अर्ली डिटेक्शन में, स्क्रीनिंग में लोगों को कैंसर डायग्नोज हो रहा है. कितने लोगों को स्क्रीनिंग का पता है कि फैमिली में कैंसर होता है, फिर भी लोग स्क्रीनिंग के लिए नहीं जाते हैं. इतना इग्नोरेंस है. हेल्थ केयर वर्कर्स के बीच में भी ओनली 36% people know that they should do the screening and how serious it is. So हम लोग अभी I think 10 साल पीछे हैं अवेयरनेस के मामले में कैंसर में. तो आपको तो हो चुका और आप बाहर उससे निकल चुके हैं. तो I'm not surprised hearing कि you're facing certain challenges. It's the education that we all have, I would say, जो हमें कभी मिली नहीं है कैंसर के बारे में.
So at least basic awareness, basic education, it should be part of curriculum because this is such a disease जिसका कुछ cure नहीं है. So it's important that we educate our society, our kids, our family, relatives about healthy lifestyle, cancer screening, prevention, और तभी कैंसर के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलेगा. But I see that you are completely healed, and that's what matters. That's very important because there's one really good paragraph that comes to my mind, और मैं try करूँगी कि वो English हिंदी में mix करके बोलूँ. Healing essentially involves choices in how one seeks to create an inner and outer condition that maximize the possibilities of physical, mental, emotional, and spiritual well-being in the face of cancer. So cure या healing जो हम बात करते हैं कैंसर में, healing का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे कैंसर से. हीलिंग का मतलब ये है कि आपके बॉडी की और आपके माइंड और सोल की इनर और आउटर कंडीशन कैसी है, चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो या फिर स्पिरिचुअल हो. जैसा कि कृष्णा ने बताया कि जो भी चीज से आपको पीस मिलती है, चाहे वो आपके लिए भगवान के सामने बैठना हो या फिर कोई भी म्यूजिक सुनना हो या फिर ग्रीनरी में बैठना हो, नेचर के साथ में, जिस भी चीज से, तो वो एक ट्रू हीलिंग होती है. Healing can take place whether one is recovering physical or facing recurrence or even death. तो healing कभी भी हो सकती है, चाहे आपका कैंसर से आप ठीक हो रहे हैं या फिर आपको कैंसर दोबारा आ गया है या फिर आप डाइंग प्रोसेस में, जो एंड ऑफ लाइफ केसेस होते हैं. Healing, I believe, tends to optimize the chances for physical recovery and certainly transforms the quality of life. कि healing से फिजिकल रिकवरी के चांसेस डेफिनेटली बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी वॉरियर्स को, सर्वाइवर्स को देखा है कैंसर में, जिनका भी इमोशनल स्ट्रेंथ था, दोज हु वर लाइक रियली हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेडिकेशन कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं करके दिखाऊंगी, वो लोगों का एक्चुअल में सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. बिकॉज आप जिस तरीके से अपनी बॉडी को मोल्ड करते हो, जिस तरीके से आप सोचते हो, आपकी बॉडी उसी के हिसाब से मोल्ड होती है. क्योंकि बॉडी में जो साइकोसोमेटिक इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी इफेक्ट एंड सोमेटिक इज द फिजिकल अपीयरेंस. तो आपका जो साइकोसोमेटिक इफेक्ट होता है, दैट इटसेल्फ सेज दैट आप बॉडी में जो फीड करोगे, चाहे वो अच्छा खाना हो या फिर वो अच्छी थॉट्स हो, आपकी बॉडी भी वैसी ही बन जाती है. सो अगर आपकी बॉडी हीलिंग हो रही है, अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में है, चाहे वो फैमिली रिलेशंस है, चाहे वो कुछ भी है, तो फिजिकल रिकवरी डेफिनेटली बढ़ती है, चांसेस बढ़ते हैं, बट आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होता है. सो दैट्स रियली गुड नोइंग दैट कृष्णा, आपने आपकी ट्रू वेज में हीलिंग हुई है. एंड बहुत सारे और लोग इस जर्नी से निकल रहे हैं. आज हमारे साथ में यहाँ पे सर्कल में भी काफी सारे लोग हैं जो कैंसर जर्नी से भी जा रहे हैं. और मैं एक मैसेज सबको देना चाहूंगी कि कभी भी कैंसर में होप मत खोना, क्योंकि स्टेज 4 सर्वाइवर्स को भी हमने ठीक होते हुए देखा है. तो फिर डरने की कोई बात नहीं है. स्ट्रॉन्ग विल पावर, गुड फैमिली सपोर्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल, राइट ट्रीटमेंट एट द राइट टाइम. एंड आपको ये देखना है कि मेरे लिए मेरी चॉइसेस ऑफ हीलिंग क्या है. कुछ भी आप चीजें ले रहे हैं, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑल्टरनेटिव है, इंटीग्रेटिव है, कुछ डाइट का आपके रेस्ट्रिक्शन से, जो भी है, जो बस अच्छे और खुशी से करना चाहिए उसे. अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो इट्स ओके थोड़ा सा चीटिंग करके, बट अल्टीमेटली आप खुश रहने चाहिए. क्योंकि अगर आपने ठान लिया कि नहीं मेरे को ठीक होना है और आज मेरा पूरा फोकस मेरी हेल्थ पे है, तो आप ठीक होके ही रहेंगे. अपनी बहुत अच्छी कम्युनिटी है ज़ेनोन कोलोडायोल अवेल्स कैंसर की. सो आप लोग, मैं अभी कम्युनिटी का लिंक भी यहाँ पे शेयर करूंगी. जो लोग ग्रुप्स में नहीं हैं, आप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं. हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल के टिप्स शेयर करते हैं. कोई और अगर पेशेंट कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको भी उस क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम सब लोग एक ही जर्नी से निकलते हैं. आज किसी और के साथ जो हो रहा है, शायद हम उससे ऑलरेडी निकल चुके हैं या फिर शायद वो हमारे साथ हो सकता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कैंसर वर्ल्ड ही बहुत नया है हम सबके लिए. तो कैसे हम एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, एक दूसरे से सीखें. द एंटायर पर्पज आज जो हीलिंग सर्कल में हम एक दूसरे के साथ में ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, उसका पर्पज ही यही है कि कनेक्टिंग विद ईच अदर एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर्स एक्सपीरियंसेस. जैसे कि आज कृष्णा के एक्सपीरियंस ने हमें सिखाया कि लाइफ में आपको कई बार ऐसा होगा कि रियलिटीज का पता चलेगा जो शायद आपने कभी सोची नहीं हो, बट उन टफ सर्कमस्टांसेस में भी हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से डिसीजन लेने हैं. क्योंकि
दुख होता है, कई बार हर्ट होता है, कई बार अनएक्सपेक्टेड चीजें भी होती है कैंसर में, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो उससे निकल रहे हैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस कम्युनिटी कि आप अकेले नहीं हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, आपको एक दूसरे से इनफैक्ट हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग एक कैंसर पेशेंट को सिमिलर टाइप ऑफ कैंसर सर्वाइवर से कनेक्ट करवाएं। सो आज हमारे कम्युनिटी में 1000+ कैंसर सर्वाइवर्स एंड केयर गिवर्स हैं, क्योंकि अगर एक सार्कोमा का केस है तो डेफिनेटली वो लोग चाहेंगे कि मैं सार्कोमा सर्वाइवर से ही कनेक्ट करूं, ना कि शायद ब्रेस्ट कैंसर और कोलन कैंसर से। एंड सिमिलरली एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर से कनेक्ट करना चाहता है। तो काफी चीजें हैं जो हमें कैंसर की जर्नी में चाहिए होती है, चाहे वो डॉक्टर का ओपिनियन हो, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, इमोशनल वेलनेस हो। बट इमोशनल वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग इसी चीज को कई बार इग्नोर करते हैं, क्योंकि मैंने सबकी जर्नी में यही देखा है कि हम लोग काफी लेट, 1 साल निकल जाता है, 8 महीने निकल जाते हैं, फिर ध्यान देते हैं इमोशनल वेलनेस पे, जबकि आई बिलीव कि इमोशनल वेलनेस शुरू से उस पर ध्यान देना चाहिए। एंड केयर गिवर्स को भी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज जैसा केयर गिवर सोचेंगे, बिहेव करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पेशेंट पे होता है। और जिन भी पेशेंट्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था केयर गिवर्स का, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा था, उनके आउटकम भी बहुत अच्छे आए हैं। तो फैमिली का सपोर्ट होना, राइट, एक होता है ना कि मेरे को भी कैंसर हुआ है तो मुझे अपना वेलनेस प्लान क्या है, मेरी जर्नी कैसी होनी चाहिए, मुझे किन लोगों से बात करनी है, मुझे अपना प्लान, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट 1 मंथ या 2 मंथ्स का नहीं है कैंसर जर्नी, ये शायद 4-5 साल तक चलता है, राइट। तो मुझे उस वक्त क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अपने कनेक्शंस, अपने रिसोर्सेज सब इकट्ठा करने हैं, ताकि मैं एक सेफ एनवायरनमेंट में रहूं और आई डोंट गेट लॉस्ट इन दिस होल न्यू वर्ल्ड ऑफ कैंसर। सो दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। एंड काफी अच्छा लग रहा है आप सबको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे देख के, क्योंकि दैट शोज कि हम सब एक साथ में हैं इस जर्नी से निकलने के लिए, इस डिजीज से फाइट करने के लिए। क्योंकि जब होता है तो आप लोगों को पता है कि क्या कंडीशन होती है फैमिली में, और जो आज भी कई लोगों को हर साल 10 लाख लोगों को कैंसर डायग्नोज हो रहा है। सो मैं प्रिवेंशन अवेयरनेस के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग अभी बहुत दूर है उससे। सो व्हेन आई टॉक टू पीपल एंड टॉक अबाउट इट, जिनकी जैसे मैंने बताया कि फैमिली में हुआ है फिर भी बस नहीं करवानी है, या फिर ठीक है करवा लेंगे, ऐसा होता है, जबकि काफी लोगों का उसमें डायग्नोज हो रहा है। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ब्लड टेस्ट और जो कैंसर की बेसिक स्क्रीनिंग होती है मेल और फीमेल्स के लिए वो करवाएं। स्पेशली जो लोगों को 40 से ऊपर का जिनका एज है उनको डेफिनेटली करवानी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी को तो हो रहा है, तो शायद आप भी वो हो सकते हैं कल, तो उसके पहले अगर हम जल्दी डिटेक्ट कर लें तो डेफिनेटली क्योर पॉसिबल है। Would like to hear from others about their experience, and we will start with Praveen ji. Praveen ji, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? Hi, this is Praveen Shah. Hi. My sister-in-law is suffering from stomach cancer for the past 2 months, and already 2 cycles of chemo has been given to her, and the 3rd cycle will be falling on the 30th of this month. And after the 2 chemos, she is feeling better, and almost she is living a normal life. And because of all your guidance, and because my discussion with your doctors, I was able to get some information so that it has become easy for her to undergo the treatment. Thank you for arranging such a meeting and giving us feedbacks of the cancer survivors as well as doctors like you. Thank you for the help. Thank you so much, Praveen ji, and glad to know that your sister-in-law is recovering, feeling better. Our all prayers and love to her. मेरे को बस वही है कि अगर हम सही चीजें करेंगे कैंसर में तो बिल्कुल हम उससे बाहर आ सकते हैं। एंड इफ एनीबडी नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प की कुछ टिप्स चाहिए, चाहे वो लाइफस्टाइल के रिगार्डिंग हो, डाइट के रिगार्डिंग हो, मैंने ये ग्रुप का लिंक भी अभी चैट में सबके साथ में शेयर किया है, और मैं एक नंबर भी यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आपको अगर काफी सारा फ्री मटेरियल हम लोगों ने कैंसर पे कलेक्ट किया है, विच इज जो जनरल टिप्स होती है, गाइडलाइंस होती हैं,
तो वो फॉलो करनी चाहिए डेफिनेटली। zenonco.io की वेबसाइट पे भी होम पेज पे हमने वो पीडीएफ्स डाल रखी है, अपलोड कर रखी है। तो आपको अगर चाहिए तो आप मैं यहाँ पे नंबर शेयर कर रही हूँ 9372976783। तो आप इस पे भेज सकते हैं। तो विल शेयर दोज गाइडलाइंस विद यू। बहुत जरूरी है कि हम सब उसको फॉलो करें, क्योंकि सब लोग बहुत लेट जगते हैं कि हाँ मैंने भी वैसे ही गलतियां की है, मुझे भी नहीं पता था कि हमें क्या क्या चीजें कैंसर में करनी चाहिए। और बहुत वेल विशर्स थे जो गाइडेंस देते थे, बट कभी कभी उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वही होती है सबकी जर्नी। बट आज जब हम उससे निकल चुके हैं तो हमें पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा है। और आउटकम क्या रहेगा सबका अलग अलग रहता है, लेकिन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस हीलिंग वाला होना चाहिए, सफरिंग नहीं होनी चाहिए। पेन हो सकता है और उसके लिए हम सोल्यूशन निकालेंगे, बट सफरिंग नहीं होनी चाहिए, स्ट्रगल नहीं होना चाहिए। आप में से किसी को भी किसी भी टाइप का स्ट्रगल हो रहा है कैंसर जर्नी में, आप मुझे इस नंबर पे लिख सकते हैं। मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगी कि आपको इसका सोल्यूशन मिले। और बाय गॉड ग्रेस एंड आप लोगों के सपोर्ट से आज हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है कि हम हर चीज में हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के हो, फंड रेजिंग हो या कोई भी हो। तो पेन मैनेजमेंट है। आज हम लोग कैंसर पेशेंट से बात करते हैं, हजारों पेशेंट्स, और कॉमन प्रॉब्लम रहती है कि पेन हो रहा है कैंसर में बहुत ज्यादा, या फिर वेट लॉस बहुत ज्यादा है, वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है। तो जब ये सब चीजें होती है ना तो रिकवरी भी मुश्किल होती है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम साइड इफेक्ट्स को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि बॉडी क्या है, बॉडी सेल्स से बनी हुई है। और अगर आपकी फिजिकल एनर्जी डाउन हो रही है, अगर आपका मेंटल स्टेमिना ही डाउन हो रहा है, तो हम रिकवरी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योर कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योर का फाउंडेशन ही यही है कि आपका स्ट्रेंथ बननी चाहिए, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ हो चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ हो। तो हम सब आपके साथ में हमेशा हैं। कुछ भी तरीके का आप कभी भी मुझे इस नंबर पे लिख सकते हैं, एंड मैं इंश्योर करूंगी कि आपको अपनी सारी क्वेरीज का आंसर मिले, है ना। चाहे वो किसी सर्वाइवर से कनेक्ट करना हो, किसी डॉक्टर से हो, तो काफी अमेजिंग वॉरियर्स है हमारे प्लेटफॉर्म पे जो बस एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, गाइड करना चाहते हैं। तो बस डिफिकल्ट है बट हम सब एक साथ में हैं, बस ये चीज का ध्यान रखिएगा। थैंक यू। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके लिए क्वेश्चन है कृष्णा, आर यू स्टिल ऑन फॉलोअप? क्या आपके फॉलोअप्स अभी भी चल रहे हैं? Not really. So मेरा जो कैंसर का फॉलोअप है, it was over in 2007. But after that, I think 2005 से I was having hormonal issues like menses के issues हो रहे थे, and later in 2012-13 I was diagnosed with thyroid hypothyroidism. So right now I am getting treated for that. But with regards to my cancer, with regards to my surgery aspect was over in 2007. Okay, got it. Thank you for sharing. मनोज नेगी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैं आपको अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी मनोज जी। मेरे तो पेशेंट है कोई ना, मैं तो नहीं हूँ। आपकी फैमिली में पेशेंट है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ओके। उनकी तो हालत बहुत क्रिटिकल है, वो एक्चुअली अभी 4th स्टेज है उनका। तो पता नहीं, अब आजकल बहुत उनकी तबीयत खराब ना, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा कुछ। ओके, ठीक है मनोज जी, आप ना मैंने आपको यहाँ पे एक नंबर दिया है, तो आप वहाँ पे मैसेज भेज सकते हैं, हम लोग देखेंगे कुछ भी अगर उनके लिए कर सकते हैं तो। मैम इसमें मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या बोलते हैं, उनकी डाइट वगैरह में क्या, मतलब डाइट वगैरह क्या दे उनको, जैसे दवाइयाँ मेडिसिन ले रहे हैं ना हम आपकी। राइट, तो एक काम करिए ना मनोज जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, और मैं आप मेडिसिन ले रहे हैं वो मुझे, हमें केस देखना पड़ेगा पहले, कौन सा कैंसर है और क्या इफेक्ट्स है उनको, कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, और फिर उसके हिसाब से आपको फिर एक डाइट प्लान शेयर कर देंगे, ठीक है? ठीक, अब मुझे ये अब नंबर मैंने चैट में लिखा है, इस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। ओके, थैंक यू। हाय दिलीप जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अभी मनोज जी आपके लिए है ये, मैं आपसे बात करता हूँ। मनोज जी, आपने ये कहा कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट? सबसे बड़ी बात यह है कि थोड़ी देर पहले ही
5 मिनट पहले डिम्पल ये कह रही थी कि डोंट लूज योर होप्स, राइट। और ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि हमें पता नहीं है हम कब जाएंगे। एज ए कैंसर पेशेंट, मैं भी एक कैंसर पेशेंट हूँ, राइट। हमें पता नहीं हम कब जाएंगे, बट हमें ये पता है कि हम अब जिंदा है। और अगर एज ए केयर गिवर मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप हम सब लोग मिलके, जो भी पेशेंट है, उन लोगों को उनके पास उनकी डेस्टिनी के हिसाब से जितनी भी जिंदगी बची हुई है, उस जिंदगी को एक खुशनुमा जिंदगी बनाए, जिसको हम ये कैंसर हीलिंग में और ये काउंसलिंग में हम लोग ये कहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इवन मेडिकल साइंस या भगवान भी छूट पड़े ना कि अब कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी उस व्यक्ति को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ से जीने का अधिकार है। और वो अधिकार जो है वो हम सब लोग मिलके दे सकते हैं। और वो छोटी सी बात है, छोटी सी, बहुत मतलब मैं ये कहूंगा ना कि एक छोटा सा धागा भी जो है ना, वो पतला सा धागा जो है वो बिल्कुल उसके जैसे, मतलब हम सब लोग जो है वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। और क्वालिटी वाली जो जिंदगी की जो बात करते हैं हम, राइट, वो हमको पता है क्योंकि हम पेशेंट है। Right. हमको पता है कि क्वालिटी लाइफ क्या है, आपको शायद पता नहीं चलेगा। सो ट्राई टू गिव दैट क्वालिटी लाइफ टू दैट पेशेंट। Important. Thank you. Thank you, थैंक Dilip. यू। Thank you so much. Yeah. Rajkumar, you want to share something? हाँ मैम, एक्चुअली मेरी वाइफ के बारे में है। उनको 2016 में उनको यहाँ पे थायराइड में एक बम्प आया, छोटा सा था लेफ्ट साइड में। तो हमने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास गया मैं, SGPGI लखनऊ में। तो उन्होंने बायोप्सी की, स्कैन किया, सब कुछ करके उन्होंने बस इतना बोल दिया कि आप रहने दीजिए, कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ख्याल रखिए ये एक नॉर्मल गांठ है और उसमें है कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली उसके बाद प्रॉब्लम बढ़ती गई और उनको पेन बहुत ज्यादा होता था यहाँ पे। तो कई बार कई हॉस्पिटल गए, लेकिन मैक्सिमम मुझे यही नहीं समझ में आया कि उनको क्या था। बार बार यही कहते हैं, और जो भी बायोप्सी करते उसमें रिपोर्ट जो भी थी वो बेनाइन करके ही आता था। तो लास्ट टाइम मैं मुंबई लेके आया उनको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जाके मुंबई का एक बड़ा हॉस्पिटल है कुछ, मुंबई की ये बॉम्बे हॉस्पिटल, सॉरी, यहाँ पे उनको लेके गया। तो यहाँ पे उन्होंने जब उनकी जांच की तो यहाँ पे उनको थोड़े डाउट्स आए कि कुछ नियोप्लाज्मा है, बेथेस्डा 4 कैटेगरी करके। तो जाके उनको लेफ्ट साइड का निकलवाया मैंने, वो गांठ फिर सर्जरी करा दी एटलीस्ट, क्योंकि चूंकि लखनऊ वाले डॉक्टर कहते थे कि नहीं करने की जरूरत है सर्जरी, लेकिन इनका एक अलग था। जो यहाँ पे मैंने ENT को दिखाया, डॉक्टर रितु शाह करके हैं, सेठ। तो उन्होंने जब सर्जरी करके निकाली तो बायोप्सी रिपोर्ट आई मैम। बायोप्सी रिपोर्ट में पहली बार तो मैंने प्राइवेट में ही कराया था, तो कैंसर के वहाँ भी काफी ज्यादा चांसेस दिखे उनको। फिर उन्होंने रिव्यू के लिए टाटा में भेजा। टाटा में मैंने जाके उसका रिव्यू कराया तो वो था फॉलिकुलर वेरिएंट ऑफ पिगमेंटरी कार्सिनोमा। तो फिर मैंने टाटा में कंटिन्यू रखा फॉलोअप, 2-3-4 बार फॉलोअप किया, लगभग मैंने 5 महीने 6 महीने तक। उसके बाद फिर टाटा का अपना ओपिनियन अलग था कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमने गांठ तो निकाल दी है, बाकी कुछ रिमाइनिंग नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे डर था कि पहले भी ऐसा हो चुका है, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ नहीं है, आप टेंशन मत करिए। तो मैं वापस से SGPGI गया। तो ऑन्कोलॉजिस्ट का ओपिनियन अलग था, उनका प्रोटोकॉल अलग था, और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का अलग था। उन्होंने कहा कि इस केस में हमारा प्रोटोकॉल कहता है कि हम दूसरी साइड का भी टोटल थायराइड निकाल देंगे। और जो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट थे वो कहते थे कि नहीं, हम आधा निकाल चुके हैं, आधा रहने देंगे। तो अभी तो हमने फिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की बात मानी और पूरा का पूरा निकाल दिया। अभी वो बेहतर भी हैं, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। थोड़ा उनको प्रॉब्लम है कैल्शियम की, थोड़ा उनका पैराथायराइड ग्लैंड अफेक्टेड हुए हैं सर्जरी से।
तो कैल्शियम का सप्लीमेंट उनको देना पड़ता है, बाकी तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ मैम कि एक्चुअली हमारे मेडिकल सिस्टम में ऐसा क्यों है कि हर एक डॉक्टर का एक अलग ओपिनियन है। मैं अगर पहले ही इंडोक्राइनोलॉजिस्ट की बात मानता था तो अब तक कुछ नहीं था, फिर बाद में मैं अगर ऑन्कोलॉजिस्ट का मानने लगा था तो मुझे दोबारा कराने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली कैंसर के बारे में इतनी ज्यादा मिस गाइडलाइंस क्यों है मैम? राइट राजकुमार, बिकॉज आप जो बोल रहे हैं वो सही है, और काफी लोगों के साथ में मैंने भी ऐसा होते हुए देखा है कि या तो स्टार्टिंग में डायग्नोस ही नहीं होता है, डॉक्टर से मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली, लेकिन फिर भी डायग्नोसिस होते होते बहुत लेट हो जाता है जबकि टच में है डॉक्टर्स के, या फिर डिफरेंट डॉक्टर्स का डिफरेंट ओपिनियन होता है। मैं पहले सेकंड चीज को पहले आंसर करूंगी कि डिफरेंट डॉक्टर का कभी कभी डिफरेंट ओपिनियन रहता है, क्योंकि कैंसर काफी कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, और डॉक्टर्स 50% ऑफ द टाइम इंटरनेशनल गाइडलाइंस यूज करते हैं, एंड काफी टाइम वो अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं कि ये पेशेंट के लिए क्या करना चाहिए। कभी कभी अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस में तो हो सकता है कि ओपिनियन भी अलग हो। इसके लिए लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर से मिले, क्योंकि उन्होंने हजारों पेशेंट्स को देखा होगा उस वक्त तक, क्योंकि कैंसर ऐसी डिजीज है जहाँ पे अगर दो पेशेंट बिल्कुल सेम है, सेम जेनेटिक प्रोफाइल, एवरीथिंग इज सेम, स्टिल ट्रीटमेंट आउटकम डिफरेंट हो सकता है दोनों का, एज भी सेम है, कैंसर टाइप सेम है। तो इसके लिए बहुत ही पर्सनलाइज डिजीज है, बहुत ही पर्सनलाइज केयर भी चाहिए इसे, और इसीलिए हो सकता है कि आपके केस में एंड इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम मल्टीपल ओपिनियन लें। देयर इज अ रिसर्च दैट सेज कि जब किसी डॉक्टर के फैमिली में कैंसर डायग्नोज होता है, सबसे ज्यादा सेकंड ओपिनियन एक डॉक्टर लेता है। तो क्योंकि उन्हें पता है कि डिफरेंट डॉक्टर्स रीड पैथोलॉजी रिपोर्ट इन डिफरेंट वेज, उनका जो एनालाइज जैसे करते हैं पैथ रिपोर्ट को और जैसे परसीव करते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। एक डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट की खुद की फैमिली में अगर कैंसर डायग्नोज होता है तो दे गो फॉर मिनिमम 5 to 6 सेकंड ओपिनियंस बिफोर दे स्टार्ट एनी ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हम लोग भी सेकंड ओपिनियन के बारे में गाइड करते हैं, आपने भी काफी ली होगी और लेनी भी चाहिए डिफरेंट सिटी से, डिफरेंट डॉक्टर्स से, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि हाँ सही डिसीजन क्या है और गलत क्या है। तो और बाय द टाइम यू मीट 3-4 डॉक्टर्स क्लैरिटी आ जाती है कि हाँ यही मेरे लिए सही डिसीजन है। तो कई बार लोग जाते हैं, एम्स जाते हैं, टाटा जाते हैं, दूसरी सिटी से आते हैं सिर्फ ओपिनियन लेने के लिए, ट्रीटमेंट वो अपनी सिटी में लेंगे लेकिन ओपिनियन के लिए वहां जाते हैं टू वैलिडेट कि जो मैं सही कर रहा हूँ वो सही है क्या। तो एक सिटी में डॉक्टर बोलेगा, शायद अभी रिसेंटली एक केस हुआ है मेरे ही रिलेटिव का है, और एक सिटी में डॉक्टर ने बोला कि आई थिंक अभी मतलब 4th स्टेज है, रिकरेंस हुआ है 8 साल बाद में, और डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप है ना इतना ज्यादा स्प्रेड नहीं हुआ है, लिम्फ नोड्स में है, तो आप कुछ टाइम बाद में भी शुरू कर सकते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है अभी आपको कैंसर है, स्टेज 4 है, आप बैठ के वेट नहीं करोगे राइट। तो उन्होंने वो मुंबई गए और मुंबई से टाटा में उन्होंने ओपिनियन लिया, टाटा के डॉक्टर ने कुछ ओपिनियन दिया कि इमीडिएटली इससे शुरू करो, और उनका कल कीमो उन्होंने जयपुर से शुरू भी कर दिया। तो इसीलिए एक डॉक्टर ने बोला वेट कर सकते हो, दूसरे ने बोला नहीं इमीडिएटली शुरू करो। तो ऐसा कंडीशन हर बार आता है। और आपका जो पहला क्वेश्चन था कि डायग्नोसिस को लेकर के कि डॉक्टर से मिल रहे थे फिर भी डायग्नोसिस नहीं हुआ राइट, तो ये कॉमन है। इसके लिए जब तक आपको प्रॉब्लम की रूट कॉज का पता नहीं चल जाता है नहीं रुकना चाहिए। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड के केस में भी उनका जो सिम्टम्स दिखा रही थी बॉडी, एक तो उन्होंने सिम्टम्स को चेक करवाने में लेट किया, 3-4 महीने लेट किया, उसके बाद में जब डॉक्टर के पास में जा रहे थे तो डॉक्टर ने भी मतलब पहले बोला अच्छा पेन हो रहा है स्लीपिंग पिल्स ले लो, नींद नहीं आ रही है कर लो, पेन किलर्स ले लो, कॉन्स्टिपेशन है ये लेके ट्राई कर लो, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है अचानक से बॉडी में 10 किलो वेट क्यों कम हो गया। उसके बाद में जब उनको एंड में जाकर के उसके भी लेट हो गया, रेक्टल ब्लीडिंग चालू हो गया, तब जाके उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, तब डॉक्टर ने बोला पाइल्स है, तब भी बोला कि पाइल्स है। ये सब सिम्टम्स कैंसर के भी तो होते हैं ना। तो फिर पाइल्स का ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन फिर सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी किया और फिर पता चला कि ये तो ऑलरेडी 3rd स्टेज का लेट कैंसर है। तो एक तो 4 महीने उन्होंने लेट किया और फिर 1-1.5 महीना डॉक्टर की वजह से लेट हो गया। तो अभी रिसेंटली एक और केस चल रहा है जहाँ पे वन ऑफ माई फ्रेंड ने अपने दोनों पेरेंट्स के लिए, खुद के और वाइफ के पेरेंट्स के लिए स्क्रीनिंग करवाया, स्क्रीनिंग टेस्ट,
क्योंकि ही इज वर्किंग इन कैंसर केयर, तो उसको पता है स्क्रीनिंग की इंपॉर्टेंस होती है। तो दोनों मदर्स का थायराइड आया है जो पहले नहीं था, और एक फादर का CA लेवल हाई आया है। अभी कितना हो गया, 20-25 दिन हो गए हमने वो टेस्ट करवाए हैं, और अभी भी वो मुंबई में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रूट कॉज। एक डॉक्टर ने बोला ये दवाई ले लो बस ठीक हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हम कैंसर में है तो हमें पता है CA लेवल अगर इतना हाई है, 6 के अबव है, तो कुछ तो प्रॉब्लम होगा। तो कुछ लोग होंगे जिनको ज्यादा अवेयरनेस नहीं होगी, वो शायद वहीं पे छोड़ देंगे, चलो ठीक है मेडिसिन ले ली हो गया। लेकिन अभी शायद उनके लिवर में इशू है या फिर क्या इशू है, अभी कोलोनोस्कोपी होने वाला है उनका। मैं बोल रही हूँ 20 डेज हो गया, अभी भी रूट कॉज नहीं पता चला है। तो इसीलिए जब भी आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, रूट कॉज तक जाओ, और उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, और काफी सर्वाइवर्स ने इस प्लेटफॉर्म पे आके शेयर किया है कि उनका भी मिस डायग्नोसिस हुआ था पहले। तो डॉक्टर्स ट्राई देयर बेस्ट, लेकिन वो डे 1 पे आपको पेट स्कैन करवाने को नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो। तो दे विल गो स्टेप बाय स्टेप कि पहले ये करवा लो, फिर ये एलिमिनेट कर दिया, ये एलिमिनेट कर दिया, देन दे गो टू एडवांस कि अच्छा आप सब कुछ ही नहीं है तो फिर शायद अब कैंसर के टेस्ट करवा लीजिए आप, राइट। तो ये हाई लेवल होने के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं, तो वैसा होता है। तो राजकुमार आपका कंसर्न बहुत वैलिड है, और जैसे अनुराधा जी ने चैट में लिखा है कि इट हैपेंस विद एनी डिजीज, तो आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम हर डायरेक्टली। अनुराधा जी आप शेयर करना चाहेंगे इसके ऊपर? यस, एक्चुअली ये वाली चीज जो इन्होंने बोला है कैंसर का, तो कोई भी डिजीज डायग्नोज होती है तो जनरली इट हैपेंस कि हम सेकंड ओपिनियन के लिए सभी के पास जाते हैं, और सबका ही थोड़ा थोड़ा ओपिनियन वेरी करता है। और कैंसर में तो हम ज्यादा सतर्क रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन ले इस तरीके से। और अभी सेशन में एक मैं आई फॉरगॉट द नेम, जो केयर गिवर है, उन्होंने कहा कि अब कोई होप्स नहीं है उनके पेशेंट के लिए। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारे यहाँ एक सर्वाइवर है, वो पोएम्स लिखती है, तो उसने इतनी अच्छी लाइनें लिखी है कि देखिए मरना तो एक दिन सबको ही है, मरना तो एक दिन सबको ही है, पर मरने से पहले मरना क्या। तो इसलिए ये जिंदगी के लिए जितने भी दिन उनके पास हैं या जो भी हैं, आई डोंट नो, पर हम उनको जो खुशी दे सकते हैं और अच्छा रख सकते हैं वो करें, और होप नहीं हम लूज करें कि कुछ हो नहीं सकता है। ईश्वर जब साथ होता है तो कुछ कुछ तो हो ही जाता है, कुछ रास्ता निकाल देता है वो। थैंक यू। थैंक यू आई रियली लाइक आपकी लाइन जो आपने बोली कि उससे पहले मरना क्यों है। तो डेफिनेटली, एंड मनोज जी अगर उन्हें पेन है तो डेफिनेटली हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं पेन के लिए। तो उससे लगता है कि हाँ क्या ऐसे क्यों जीना है जब इतना तकलीफ होती है तब, तो उसके लिए डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं। बट होप रखनी है, हिम्मत रखनी है, छोड़नी चाहिए बस। थैंक यू उम्मीद का दामन पकड़े रहना चाहिए। थैंक यू आंटी। दक्ष कौर आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। एक्चुअली दक्ष कौर मेरी डॉटर का नाम, माई सेल्फ पुष्पा नेहरा। तो मुझे आपसे यही कंसल्ट करना था, अभी मेरी ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, तो कैंसर मेरा फर्स्ट स्टेज का था मैम। तो ब्रेस्ट सर्जरी को रिमूव होगा, लिम्फ नोड वगैरह सब रिमूव किए हैं। अभी डॉक्टर ने मुझे कीमो के लिए सजेस्ट किया है और उसके बाद रेडियोलॉजी चलेगा। तो मुझे ये पूछना था कि कीमो के क्या साइड इफेक्ट हैं, और मतलब मुझे क्या क्या इसका मतलब सिम्टम जो मुझे बाद में फील होंगे, वो सब मुझे जानना था। डेफिनेटली मैं इसके बारे में अपने कुछ थॉट्स शेयर करूंगी, और फिर मैं अनुराधा आंटी से भी रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज शी हैज गॉन थ्रू दिस जर्नी हरसेल्फ। शी इज अ कैंसर विजेता, और बहुत सारे पेशेंट्स को भी वो गाइड कर रहे हैं। तो जब हम लोग साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कीमोथेरेपी के, जो मैंने देखा है कि डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट टाइम पे साइड इफेक्ट्स आते हैं। किसी को फर्स्ट कीमो में बहुत अच्छा लगता है कि वाह ये तो पहले करवा लेते, कैंसर से इतना तकलीफ हो रहा था, It's लेकिन depend on the immune system of the patient or something different. Sorry, come again. It depend on the immune system of the patient or some other any effect. 2-3 factors it depends on. One is patient का strength, immunity, वो सब कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी और लेट साइड इफेक्ट्स आएंगे। इफ योर बॉडी इज रियली लाइक टफ एंड गुड एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी का बहुत अच्छा है, देन इट कैन फाइट विद दिस एंड देन यू मे नॉट फेस द साइड इफेक्ट्स। बट ऑल्सो इट डिपेंड्स कि मेडिसिन का रिएक्शन कैसा होता है। इवन इफ योर बॉडी इज वेरी स्ट्रॉन्ग,
बट आई हैव आल्सो सीन, जैसे मेरे हस्बैंड को वो पैनिट्यूमैब लेते थे, बहुत ज्यादा गंदे रिएक्शंस हुए थे, लेकिन दूसरे पेशेंट को कुछ भी रिएक्शन नहीं हुआ, लाइक कुछ भी नहीं हुआ पैनिट्यूमैब से। तो इट्स द बॉडीज डिफरेंट फंक्शनैलिटी की वो बॉडी टू हाँ, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। या अनुराधा आंटी, आप कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? या आप म्यूट पे हैं। सॉरी, मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि कैसे साइड इफेक्ट्स होंगे, तो आप बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी चीजें एडवाइस करेंगे, तो उनको ध्यान नहीं देना है, मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है। बट द थिंग इज कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे बहुत जमाने से औरतें माँ बनती आ रही हैं, तो एक औरत माँ बनती है और दूसरी औरत माँ बनती है, दोनों को एक से सिम्टम्स कभी नहीं होते। इसलिए कीमोथेरेपी में भी हर एक के बॉडी अलग अलग सिम्टम्स देती है। तो आपकी बॉडी जब आपके पास शरीर में दवा जाएगी, आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म उसको कैसे रिएक्ट करता है, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कैसे वो चीज हो रही है। इसलिए मन में कोई डर नहीं पालें कि अरे बहुत ये होगा वो होगा, लोग बहुत डरा देते हैं। बस आप कॉन्फिडेंट रहें कि ठीक है, ये दवाई मेरे फायदे के लिए जा रही है, तो जो भी है मैं इसको लेके और फाइट करूंगी। दैट्स इट। बाल वगैरह जैसे कहते हैं कि रिमूव होते हैं, तो वो कौन सी उसमें जले जाते हैं? तो उसके लिए आई थिंक पहले ही कट करवाओ या मतलब उस चीज का वेट करो, कौन सी चीज सही रहेगी आपके अकॉर्डिंग? डिम्पल, वुड यू आंसर कि मैं बोलूं? आप बोलिए, फिर मैं अगर कुछ ऐड करना है तो शायद फिर मैं कर ओके, फाइन। जनरली इट हैपेंस कि आपकी कीमोथेरेपी के ड्रग के 15 से 17th डे के बीच हेयर लॉस होता है, और उसको ऐसा लेना चाहिए कि दैट इज वेरी 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 गुड इंडिकेशन कि आपकी बॉडी ने बहुत अच्छे से दवाई को रिस्पॉन्ड किया है। तो एक चीज तो ये है कि उसके लिए दुख नहीं मना के हमको खुशी मनानी चाहिए कि अरे वाह मेरे बाल गए, मतलब मेरे शरीर में दवाई ने बहुत अच्छा असर किया। और सेकेंडली उसके लिए मेंटली हम प्रिपेयर रहें कि हेयर लॉस होगा, तो कोई बात नहीं है। तो आप चाहें तो पहले ही बिफोर हैंड आप विग्स बनवा सकते हैं या और शेव करवा सकते हैं, और एल्स आप वेट भी कर सकते हैं कि जब आपका हेयर लॉस हो उसके बाद आप करें, या फिर आप स्कार्फ पहन के कैरी करना चाहें। आपके कॉन्फिडेंस पे है वो, तो आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं लोगों के सामने। दैट्स इट। सिंपल में कंटिन्यू नाउ। थैंक यू आंटी। या सो सॉरी, आई मिस्ड योर नेम अगेन। आपका नाम क्या है? पुष्पा नेहरा। पुष्पा जी, हाँ। तो जैसे आंटी ने बोला, बट मैंने ये भी देखा है कि सबके बाल नहीं जाते। सो मेरे हस्बैंड के बाल कुछ भी नहीं झड़े थे और पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से निकाल लिया था उन्होंने। बट कुछ लोगों के सेम मेडिसिन पे बाल झड़े हैं, तो वैसा है। बट हाँ, आई कैन कनेक्ट यू विद फ्यू पीपल जो कि ब्रेस्ट कैंसर में प्रोस्थेसिस से, विग से और काफी चीजों से सपोर्ट करते हैं, और पूरा कम्युनिटी है, तो आपको ज्यादा अच्छे उस पे इनपुट्स भी मिलेंगे। सो यू कैन मैसेज मी, मैंने आपको नंबर यहाँ पे शेयर किया है। और ब्रेस्ट कैंसर पे काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो यू वुड लव टॉकिंग टू देम एंड नोइंग थिंग्स की अगर आपका कौन सा सर्जरी हुआ है? लंपेक्टोमी हुआ है, मेस्टेक्टोमी हुआ है? जी, अभी मेरा एक तो लेफ्ट साइड की पूरा ब्रेस्ट रिमूवल हो गया, लिम्फ नोड वगैरह 16 थे वो सब रिमूव हुए हैं। तो और मेरी जो थी कैंसर वो फर्स्ट स्टेज की है, स्लो ग्रोथ वाली। तो इसमें मुझे एक ये भी चीज डाउट था कि इसमें रिजल्ट्स क्या मिलते हैं आफ्टर ऑल ट्रीटमेंट? आफ्टर ऑल जैसे मेरे रिजल्ट्स जैसे बहुत अच्छे पूरा मिलते आपका, अच्छा, जैसे डॉक्टर ने तो मुझे बोला कि 97% बहुत ही अच्छी लाइफ जीते हैं इसके बाद जो ट्रीटमेंट अगर कंप्लीट लेते हैं। राइट, वेरी वेरी गुड। इनफैक्ट पुष्पा जी, आपको डॉक्टर ने 97% बोला। अगर डॉक्टर आपको चलो 3% भी बोलते ना, फिर भी मैं आपको बोलती आपकी रिकवरी के चांसेस 100% फिर भी है, राइट? क्योंकि हमेशा जो परसेंटेज होते हैं ना, वो लाखों पेशेंट्स का एवरेज निकाल के बोला जाता है। अब आप वो 100% में आएंगे या फिर 1% में आएंगे, वो तो नहीं पता, राइट? तो जितना भी परसेंटेज हो, डोंट गो बाय दैट। गुड कि आपको डॉक्टर ने 97% बोला है, बट डॉक्टर्स ने जिनको 1% बोला था, आज वो भी कैंसर फ्री हैं और हमारे साथ में है। तो कैंसर जर्नी बहुत ही इंडिविजुअल और स्पिरिचुअल, इमोशनल, फिजिकल सब उस तरीके से होती है। कैन सर्टेनली गाइड यू मोर ऑन दिस, बट बहुत ही पर्सनलाइज्ड जर्नी है। और मैं आपको बोलूंगी, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो आज, आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होगा, और आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से कनेक्ट भी करवाऊंगी जो इस जर्नी से निकल चुके हैं और आज बहुत दूसरों को गाइड कर रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप। अनुराधा आंटी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आई विल फर्स्ट कनेक्ट यू विद अनुराधा आंटी। उन्होंने तो
पता नहीं कितने सारे पेशेंट्स को गाइड किया है। तो शी रन्स कम्युनिटी कॉल्ड विजेता इन बेस्ड आउट ऑफ इंदौर। तो संगिनी नाम है कम्युनिटी का, और संगिनी के थ्रू ये लोग कैंसर विजेताओं की हेल्प करते हैं। तो और ये ब्रेस्ट कैंसर कम्युनिटी, राइट आंटी? या तो पुष्पा जी, आप आप अपना नंबर भी मुझे दे सकते हैं, या फिर आई विल कनेक्ट यू विद द कम्युनिटी आल्सो। बट साइड इफेक्ट्स को मैनेज, डेफिनेटली योर कंसर्न्स आर वैलिड, साइड इफेक्ट्स को मैनेज करना चाहिए। और कैंसर में जैसे कि मैंने कुछ टाइम पहले बताया, आई डोंट नो आप थे क्या, लेकिन अगर हमने अपने साइड इफेक्ट्स को मैनेज कर लिया और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर लिया, तो हम लोग डेफिनेटली जर्नी को हम लोग विल कम आउट ऑफ इट वेल। क्योंकि जैसे मैं बता रही थी, फिजिकल और मेंटल दोनों का स्ट्रॉन्ग रहना बहुत जरूरी है, बाकी चीज अपने आप हो जाती है। और आप आज टचवुड बहुत हेल्दी और हैप्पी दिख रहे हैं, और आपकी आज बॉडी जितनी स्ट्रॉन्ग शेप में है, हमें इंश्योर करना है कि हम वैसे ही रहें, है ना। उसके लिए क्या क्या चीजें करनी है आपके, जैसे इमोशनल वेलनेस में क्या चीजें करनी है, आपका डाइट कैसा होना चाहिए, आपको क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं, जो भी चीजें हैं जिसका हमें ध्यान रखना होता है, जो एक इंटीग्रेटिव होलिस्टिक अप्रोच होती है, आई कैन सर्टेनली गाइड यू ऑन दैट बाद में। और आपको मैं काफी सारे लोगों से कनेक्ट करवा सकती हूँ जो इस जर्नी से ऑलरेडी निकले हैं, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेरीज उन्हें भी थी। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। और उसके बाद मैम जैसे हेयर रिकवरी मतलब आफ्टर कीमो कितने टाइम बाद होती है? कीमो की रिकवरी अगेन आई वुड से कि सबका अलग अलग होता है। कुछ लोग 1 महीने में बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाते हैं, क्योंकि धीरे धीरे और आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो उस पर भी बहुत डिपेंड करता है कि आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी कर रहे हैं, आपका विल पावर, इमोशनल लेवल कितना, आप खाना कितना अच्छा खा रहे हैं, आप और सप्लीमेंट्स कितने अच्छे से ले रहे हैं, उन सब पे भी डिपेंड करता है। बट आई हैव सीन पीपल के ट्रीटमेंट के बाद में विद इन 1 मंथ दे स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड दे कम आउट ऑफ द साइड इफेक्ट्स। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स थोड़े लंबे टाइम तक रहेंगे, बट एक वो होता है ना कि एक फेज से दूसरे फेज में जाना, वो आपको 1 महीने में दिखना शुरू हो जाता है। बट अगेन सबका अलग अलग होता है। तो बट ऑन एन एवरेज मैं इतना बता सकती हूँ आपको। तो मैम इसके बाद कोई डाइट, जैसे स्पेशल डाइट आप सजेस्ट करते हैं? हम लोग सजेस्ट करते हैं कैंसर की इसमें डाइट काफी, एक तो जनरल हेल्दी डाइट होती है, उसके बाद में कैंसर स्पेसिफिक पर्सनलाइज्ड होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कोई और डिजीज है क्या, कोमोर्बिडिटीज है क्या, या फिर कौन सा ड्रग आपका चल रहा है, क्या ट्रीटमेंट आपने लिया है, उसके हिसाब से। क्योंकि अपने को सिर्फ प्रोटीन और विटामिन का ही ध्यान नहीं रखना है, उसके साथ में हम लोगों को ये भी देखना है कि आपका जो ब्लड रिपोर्ट है, वी नीड टू इंश्योर कि आपके सारे पैरामीटर्स बैलेंस में आ रहे हैं। और टाइम के साथ में शायद कीमो के साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, तो हम उसको पहले से कैसे मैनेज करें, उसके लिए क्या न्यूट्रास्यूटिकल्स है, सप्लीमेंट्स है, डाइट है, वो सबके ऊपर हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप जो नंबर शेयर करेंगे मुझे उस पे मतलब आंसर करना है, डेफिनेटली मैं उससे कनेक्ट आप कर सकते हैं। नंबर आप वापस से लिख सकते हैं, मैं चैट में फिर से भेज सकती हूँ, और मैंने ग्रुप का लिंक भी भेजा है, तो आपको मैं ब्रेस्ट कैंसर ग्रुप में भी ऐड कर दूंगी। 9372976783 डेफिनेटली। हाँ जी। Yeah, and yeah, दिलीप जी, I will come to you very quickly. अतुल जी बहुत टाइम से पूछ रहे थे, तो I will request him to speak first. Sorry. Sure, no problem. Thank you. और रेडियोलॉजी के मैम, रेडियोलॉजी के भी साइड इफेक्ट होते हैं? हाँ, रेडिएशन थेरेपी के भी होते हैं साइड इफेक्ट्स। अतुल जी के बाद में मैं बताऊं पुष्पा जी को? क्या पुष्पा हाँ जी, बच्चे वगैरह को दूर रखना पड़ता है अगर आपकी थेरेपी हो के आप घर आए हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सब मिथ्स है। तो आप आराम से, कीमो भी चलेगा, सर्जरी भी चलेगी, रेडिएशन भी होगा, आराम से फैमिली के साथ में रहिए, और जितना बच्चे को पास में रखेंगे उतना जल्दी हीलिंग होगा आपका। और फिजिकल एक्टिविटी मतलब कितनी करनी चाहिए उस दौरान? रेस्ट करें या फिजिकल? मतलब चाहे वॉकिंग हो, चाहे थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, हाथ ऊपर कर लिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर ली। आइडियली जो होती है 150 मिनट्स इन अ वीक होती है। मतलब ये अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी कर रहे हो, आधा घंटा रोज का, तो वो बेयर मिनिमम उतना तो हमें करना ही चाहिए। हाँ जी। तो इसमें क्या चीजें होती है, मैं आपके साथ में पूरा डिटेल में शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। ज्यादा एकदम ज्यादा भी जिससे एक्सर्शन हो जाए वो भी नहीं करनी है। किस टाइप का सर्जरी हुआ है आपका, उसके हिसाब से लिम्फेडेमा का भी इश्यू होता है, तो उसके लिए अलग टाइप की एक्सरसाइज होती है। मेरे पास वीडियोस है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि ये काफी कॉमन इशू है आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी। तो वो भी मैं आपके साथ है ना, क्योंकि हमें देखना है कि
सारी चीजें नहीं कर सकते, बहुत ही स्पेशलाइज होती वो करनी होती है, क्योंकि आपका सर्जरी हुआ है इसके लिए, तो आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कैन आई टॉक नाउ? यस दिलीप जी बोलिए। पुष्पा जी, मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। मुझे आज से 12 साल पहले मुझे डॉक्टर ने कहा था कि आप 40-50 दिन जियोगे। मेरी स्पाइन सर्जरी हो गई थी, उसके बाद मल्टीपल माइलोमा बोन मैरो कैंसर डिटेक्ट हुआ, और उसके बाद फर्स्ट बोन मैरो 6 साइकिल कीमोथेरेपी के बाद फर्स्ट बोन मैरो ट्रांसप्लांट, उसके बाद में आज 3 रिलैप्स और 2 बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मैं आज आपके सामने बैठा हूँ। 12 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और 21 तारीख को, आज 25 तारीख है, 21 तारीख को मैं कीमोथेरेपी लेके बैठा हूँ। होप आपको सब आंसर मिल गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात आपकी ये बात थी कि बाल, यस, एक लेडीज के लिए अपने सर के बाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप मेरी बात अभी जो है उससे भी अच्छे बाल आएंगे आपके विद इन 6 months, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। नंबर 1। नंबर 2 जो है, जब भी आप कीमोथेरेपी लेंगे तो कीमोथेरेपी लेने के पहले एटलीस्ट ड्रिंक 2 liters ऑफ वाटर। यू विल हैव मिनिमम ऑफ साइड इफेक्ट्स, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोथेरेपी। ओके। नंबर 3, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। ऑलरेडी आपकी सर्जरी हो गई है, तो कैंसर इज आउट फ्रॉम योर बॉडी। अब सिर्फ रेसिड्यूअल है। रेसिड्यूअल को निकालने के लिए चाहे कीमोथेरेपी या हो सकता है यू प्ले अ गेम, माइंड गेम खेलना बहुत जरूरी है। तो यू प्ले अ माइंड गेम कि विथ कीमोथेरेपी आई एम टोटली इरेडिकेटिंग द डिजीज फ्रॉम माय बॉडी। मतलब 100% में मुझे रेडिएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इस दिमाग में ये चीजें डालेंगे आपके दिमाग में, 100% वो चीज आपके साथ होगी। जो चीज आप इनवाइट करोगे वही लोग आपके घर आएंगे। अगर आप इनवाइट करोगे कि मुझे रेडिएशन चाहिए, तो आपको रेडिएशन देना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मुझे कीमोथेरेपी कितनी लेनी है, 1 लेनी है, 2 लेनी है, 4 लेनी है, हो सकता है नहीं भी लेनी पड़े, हो सकता है, क्योंकि आपकी सर्जरी अभी रिसेंटली हुई है और आपके फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ब्लड रिपोर्ट्स और सीटी स्कैन और पेट स्कैन वगैरह होने के बाद में डॉक्टर डिसाइड करे कि नहीं, आई डोंट वांट टू गिव यू कीमोथेरेपी। ये भी हो सकता है। सो यू प्ले अ माइंड गेम, बिकॉज आई एम अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ अ माइंड गेम। मैं अगर 12 साल से जी रहा हूँ तो मैं इसी प्रकार से जी रहा हूँ, और एक अच्छी लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ के साथ जी रहा हूँ। तो आप ये सारी चीजें कर सकती हैं। दूसरी बात यह है कि साइड इफेक्ट्स होगी, नौशिया होगा, आपको वॉमिट्स हो सकती है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको रैशेस आ सकते हैं। इसमें से बहुत कम चीजें जो हैं वो, अगर मेंटली यू आर प्रिपेयर्ड कि ये सारी चीजें होने वाली है या इसमें से कुछ चीजें होने वाली है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। पर अगर आपको पता ही नहीं है, अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप एंजाइटी में चली जाएगी। इसलिए मेरी सलाह हर कैंसर पेशेंट को और केयर गिवर को ये रहती है, प्लीज एजुकेट योरसेल्फ। अगर आपने इसके अंदर हम जैसे लोगों को पूछ लिया, डिम्पल, ये बहुत सारे एनजीओज हैं, हम जैसे लोगों को पूछ लिया जिनकी जर्नी अच्छी है और जिनको नॉलेज है, तो देन देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। या श्योरली, राइट। सो आप जैसे डिम्पल ने जैसे कहा, डिम्पल से मेरा नंबर भी ले लेना। आप मुझसे बात करनी है तो आप एनी टाइम यू कैन टॉक टू मी, एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम। मैं भी एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता हूँ, माइलोमा फ्रेंड्स चैरिटेबल ट्रस्ट, एंड आई एम टेकिंग मोर देन 5,000 पेशेंट्स। आई एम टेकिंग केयर ऑफ देम and I am a counselor too. Wonderful. So there is absolutely no problem. I can guide you in this particular. Thank you, Dilip ji. Thank you. Yeah. Ayush Thapa, you want to share something? Atul ji, I'm trying to unmute you. अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, Atul Rao. And hi, Ayush. Okay, there is one person by the name Zoom user. I'm trying to unmute you. You want to share something? हेलो। Hi. तो अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ओके, दैट्स ग्रेट। सॉरी, शायद मे बी कुछ नेटवर्क इश्यूज हैं, बट लेट्स सी।
आपका नाम बताएंगे क्योंकि आपका नाम यहाँ पे जूम यूजर लिखा हुआ Oh, है। I'm sorry. I rejoined my meeting. My name is Atul. 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 You are Atul. Okay, ठीक है। Yeah. Yeah. Atul from Delhi. Okay, बोलिए। Yes. So, madam, my query or what is it, question is quite common, but for me it's very new to ask. तो मैम से मैं ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली आई एम मेरा जो केस था वो था रीनल सेल कार्सिनोमा विद सार्कोमोटाइड फीचर्स, ठीक है। And after my surgery, I am feeling really good. There is nothing changed in my body, but just one kidney got removed. Okay. And but the only question which was always troubling my mind, जो सवाल हमेशा मेरे दिमाग को परेशान करता रहता है, even though I'm not having anything, you just said one thing, like after 5 years, doctor will say that okay, you are okay and you can go, you will be fine. But is there any point like how we what is it, हम किस तरीके से अपने आप को इवैल्यूएट करें यार क्या यार मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, लाइक गेटिंग आउट ऑफ दिस फियर। आई डोंट नो हाउ टू, मैं अपने क्वेश्चन को शायद कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज़ आई माय सेल्फ कंफ्यूज बहुत ज्यादा। नो, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। इनफैक्ट काफी वैलिड क्वेश्चन आपने पूछा है क्योंकि मोस्टली सबको एक क्वेश्चन जब कैंसर डायग्नोसिस होता है तो ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और आफ्टर द ट्रीटमेंट आता ही आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि आपका अगर चाहे 5 इयर्स हो गया है या उससे भी बियॉन्ड है 5 इयर्स तक, तो यस डेफिनेटली रेगुलर चेकअप करवाना है एंड प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं आपको टेस्ट के, ताकि आपका अगर कैंसर वापस भी आ रहा है तो आपको टाइमली पता चल जाए। बट यहाँ पे केवियट है और मैं सबको यहाँ पे बताना भी चाहती हूँ क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत केसेस देखे हैं जहाँ पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन आंट, उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ, उनका 5 इयर्स भी हो गया था एंड अभी उनके 8 इयर्स हो गए हैं, राइट। और लेटली उनको 6 महीने से, और उनका हेल्थ ब्रेस्ट कैंसर ही, उनको भी हेल्थ अप डाउन हो रहा था बीच में भी लास्ट 5-8 इयर्स से। तो उनका अभी 6 महीने से वोकल कॉर्ड पैरालिसिस उनका चल रहा था, तो बहुत ही सॉफ्ट सी उनकी आवाज आ रही है और धीरे धीरे वो भी कम हो रही है। तो शी वॉज रेगुलर डॉक्टर के टच में थी वो कि कैंसर तो नहीं है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, ये करवाया, पेट स्कैन नहीं करवाया, बाकी सब कुछ करवाया, तो ब्लड टेस्ट करवाया, कुछ डिटेक्ट नहीं हुआ और फिर बोला कि ठीक है हम लोग वोकल कॉर्ड का ट्रीटमेंट करेंगे। अभी उन्हें यूएस जाना था, तो उसके पहले वो अपने फैमिली डॉक्टर से किसी से मिल रहे थे, तो उन्होंने बोला, बच्चों ने भी बोला कि चलो आप आने से पहले एक पेट स्कैन करवा लो, नहीं आया तो अच्छा है और आया तो एटलीस्ट विल गेट टू नो अर्ली। बहुत मुश्किल से उन्होंने पेट स्कैन करवाया, 8 साल मतलब अभी 5 साल के बाद में करवाया नहीं था, और पेट स्कैन में पता चला कि उनको ऑलरेडी कैंसर वापस आ गया है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जिनको ऑलरेडी 8 साल पहले कैंसर था एंड बीच में उन्होंने 5 साल हो गया तो स्क्रीनिंग छोड़ दिया कि ठीक है अब तो नहीं आएगा मुझे, आई एम सेफ, कंप्लीटली सेफ। और बट अभी उनको, एंड नाउ शी हैज स्टार्टेड ट्रीटमेंट। तो इसमें अब आप क्या बोलोगे, उनका तो 2 इयर्स भी खत्म हो गया था, 5 इयर्स भी खत्म हो गया था, और 8 इयर्स 10 इयर्स में कौन स्कैन करवाता है। बट Atul, to answer your question, 2 things. One is that you have fear of recurrence. So आपको when your cancer treatment is over, what all things you need to do in terms of your regular follow-ups, in terms of your healthy lifestyle, which is anti-cancer lifestyle, if I may say that. उसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि कई बार ट्रीटमेंट के साथ में हमारे लिए बहुत सारे ऑप्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिव अप्रोच में हमें जो भी चीजें करनी है, कुछ अगर सप्लीमेंट्स लेने हैं, कुछ आयुर्वेदा लेना है, कुछ जो भी चीज है, कई बार मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में कुछ केसेस में वो नहीं जाता है। इसके लिए कुछ केसेस में आफ्टर ट्रीटमेंट वी स्टार्ट दैट। आपके केस में द बेस्ट पार्ट इज दैट योर ट्रीटमेंट इज ओवर, राइट? और रीनल केस में ऑलरेडी No, madam, my treatment is not over. I'm still on a immunotherapy. You are on immunotherapy. Thank you for sharing that very important information. रीनल केस में कई बार है ना, एक और केस था जहाँ पे रीनल कैंसर का ही केस था एंड द पर्सन वाज टेकिंग व्हीट ग्रास, क्योंकि सबने बोला है व्हीट ग्रास कैंसर में बहुत हेल्पफुल होता है, लेकिन व्हीट ग्रास में हाईएस्ट पोटेशियम होता है, उसकी वजह से द पर्सन एंडेड अप गोइंग ऑन डायलिसिस। उनका किडनी स्वेल हो गई बहुत ज्यादा, क्योंकि किडनी कैंसर है, किडनी डैमेज, और उसी में अगर आप किडनी पे हाई पोटेशियम कुछ दे रहे हो तो क्या होगा आपको पता ही है, राइट? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसी चीजें लें जिससे कि वी नो दैट दिस इज द प्लान फॉर मी। एंड मुझे जैसे कि अभी मनोज जी ने, इन्होंने दिलीप जी ने बताया कि अगर आपको पता है कि आपको क्या चीजें करनी है तो एंजाइटी नहीं रहेगी। What you are having might not be fear of recurrence, it may be anxiety of not knowing what may happen next to me.
नेक्स्ट टाइम, राइट? उसके लिए द प्रोएक्टिव डिसीजंस, एक्शंस दैट यू नीड टू टेक इज व्हाट वी कैन गाइड यू आल्सो ऑन, क्योंकि हम लोग का शायद मेंटालिटी ही वैसा है कि हम हमेशा रिएक्टिव डिसीजंस लेते हैं, कुछ हो गया अब उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हाउ अबाउट कि आपको ऑलरेडी कैंसर हो गया, नाउ यू नो कि शायद रिकरेंस हो सकता है, या व्हाट ऑल थिंग्स आई कैन डू प्रोएक्टिवली ताकि मेरा डिजीज कंट्रोल में रहे और मेरा डिजीज ठीक भी हो जाए, राइट? तो उसके लिए आपका चाहे वो डाइट प्लान है, क्योंकि योर बॉडी इज व्हाट यू ईट, राइट? आपकी बॉडी में 2 इनपुट्स होते हैं, एक आपका फूड होता है और एक आपका थॉट प्रोसेस होता है। सो वी नीड टू इंश्योर कि आपकी दोनों चीजें बैलेंस में है, आप हेल्दी चीजें ही ले रहे हैं जो या तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को बढ़ाएगी, या फिर आपकी बॉडी में वो एंटी कैंसर का काम करेगी और कैंसर सेल्स को अगर थोड़े बहुत भी ट्रेसेस है तो उसको किल करेगी। फर्स्ट इज दिस। सेकेंड इज कि आपकी थॉट प्रोसेस कैसी है, उसके लिए काफी सारी चीजें हैं जो हमें अपनी स्ट्रॉन्ग इमोशनल वेलनेस के लिए करनी चाहिए, राइट? आई कैन डेफिनेटली शेयर ऑल दो टिप्स विद एवरीबॉडी। मैंने ग्रुप भी और नंबर भी शेयर किया है, इसका पूरा मेरे पास बुकलेट है जो मैं आप सबके साथ में शेयर भी कर सकती हूँ कि आपको क्या क्या चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू कम इन द सर्कल ऑफ हेल्थ, और सर्कल ऑफ हेल्थ में ईटिंग वेल, मूविंग मोर विच इज फिजिकल एक्टिविटी ऑफ एटलीस्ट 150 मिनट्स इन अ वीक, स्लीपिंग वेल, अगर नहीं नींद आ रही है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप कुछ चीजें कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स आते हैं, मेडिकल कैनबिस है, काफी चीजें हैं जो उसमें हेल्प करती है अगर आपको मेडिसिन नहीं लेनी है तो। और ट्राई करिए जितना मेडिकल जो मेडिसिन होती है जो कि केमिकल्स वाली होती है उससे जितना दूर रहे और नेचुरल चीजों से भी खुद को ठीक करें, क्योंकि कैंसर के लिए तो ऑलरेडी हम इम्यूनोथेरेपी और दूसरे कीमोथेरेपी ड्रग्स ले ही रहे हैं, राइट? एंड क्रिएटिंग हीलिंग एनवायरनमेंट, गुड कम्युनिटी और फैमिली सपोर्ट, फाइंडिंग पर्पस ऑफ लाइफ एंड एक्सप्लोरिंग व्हाट मैटर्स टू यू नाउ। तो आप अगर धीरे धीरे आपको ये देखना है कि मेरा अतुल, अगर आपका नाम अतुल है, राइट, कि अतुल का वेलनेस फॉर्मूला क्या है, अतुल को कौन सी चीजें करनी अच्छी लगती है और क्या वो सारी हेल्दी है। आज मैं फियर है कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं वो एक्शंस ले रही हूँ जिससे कि मुझे पता है कि हाँ मैं जो कर सकती हूँ मैं सब कुछ कर रही हूँ, नहीं आएगा कैंसर वापस, क्योंकि मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर क्यों मुझे कैंसर वापस आएगा? दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको फियर होगा कि यार आ गया वापस तो क्या होगा, फैल गया तो क्या होगा, लेकिन अप्रोच शुड बी मैं सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अब आपके लिए वो सब कुछ क्या है, वो मैंने कुछ चीजें शेयर की है और कुछ मैं आपके साथ में वो जो पूरा बुकलेट है मैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगी। तो हाँ, और दूसरा रेगुलर स्कैनिंग में भी आई वुड रियली सजेस्ट कि आप है ना एटलीस्ट 2 डॉक्टर से मिलें, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा, मेरे हस्बैंड की मैं बात कर रही हूँ, उनका जब स्टेज 4 का ट्रीटमेंट चल रहा था, 6 मंथ तक कीमोथेरेपी चल रहा था और कभी बीच में कीमो के बीच में कभी पेट स्कैन नहीं हुआ उनका, सिर्फ अल्ट्रासाउंड हो रहा था। तो हमें तो लगा कि ठीक है, डॉक्टर ने जैसा बोला, किसको मतलब डॉक्टर को कोई क्वेश्चन कहाँ करता है, राइट? प्रोटोकॉल जो डॉक्टर ने हमने वही किया। So we took 12 cycles of chemotherapy 6 months तक, and जब उनका कीमो खत्म हुआ तब भी प्रोटोकॉल में नहीं था कि you should immediately do the PET scan. So he went to the doctor to take permission that I'm going to get married in 6 months and I want to go to Singapore for training. तब डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, you look good, your CA is also in control, but ठीक है करवा लो एक PET scan, MRI करवा लो, not even PET scan. तो उन्होंने जब MRI एब्डोमेन की करवाई, बाय चांस उसमें लंग्स के जो लंग्स का नीचे वाला पोर्शन होता है ना, बाय चांस वो पोर्शन आया एमआरआई में जहाँ पे उन्हें नोड्यूल्स दिखे कि, और फिर डॉक्टर को डाउट हुआ तो उन्होंने पेट स्कैन करवाया और तब पता चला कि इट्स ऑलरेडी फैल गया कैंसर। पॉइंट इज कि हमें स्कैनिंग, रेगुलर फॉलोअप्स, क्योंकि कई बार CA-19 और CA भी आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा। What is the CA? What is the CA? CA. What is the CA? CA टेस्ट होता है कैंसर में, टू CA लेवल अगर बहुत ज्यादा होता है तो इट्स नॉट कि यू मे हैव कैंसर और राइट। तो आपका जो क्वेश्चन था कि व्हाट डू आई डू, द फियर ऑफ रिकरेंस दैट यू हैव, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज द राइट फॉलोअप्स ऑफ योर प्रोटोकॉल्स, जो भी फॉलो प्रोटोकॉल्स है। मैंने ये भी देखा है डिफरेंट डॉक्टर्स के डिफरेंट फॉलो प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसीलिए मल्टीपल डॉक्टर्स से टेस्ट है रेगुलर करवा लीजिए, क्योंकि लोगों का लेट डिटेक्ट होता है। इंडिया में वैसे ही 80% लोगों का कैंसर लेट स्टेज पे डिटेक्ट होता है और उसमें से भी 80% लोगों का कैंसर विद इन 2 to 3 years वापस आ जाता है। इफ यू आर एबल टू कैच इट अर्ली, दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर अस कि वी गॉट इट अर्ली, एंड बिकॉज इफ वी गेट इट अर्ली देयर इज अ क्योर पॉसिबल, हाई मैक्स वेरी हाई चांसेस ऑफ क्योर। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि अगर आपका भी कोई प्रोटोकॉल है फॉलोअप का
प्लीज उसे अच्छे से फॉलो करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। हम लोग कई बार कैजुअल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है कैंसर तो क्या जरूरत है फॉलो करने की, राइट? तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा ये है कि आप जो भी एंटी कैंसर लाइफस्टाइल, जस्ट मिनट में ना ये डिस्टर्बेंस आ रहा है तो ओके। सो दूसरा चीज ये है कि आपका जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है, एंटी कैंसर लाइफस्टाइल होती है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक बार कैंसर हो चुका है तो आपको ज्यादा अच्छे से वो रिलीजियसली और रिगरसली फॉलो करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कैंसर हुआ है तो इसका मतलब ये है कि बॉडी में कुछ तो गड़बड़ है, जो इन्वायरमेंट होता है बॉडी का वो गड़बड़ हुआ है। तो वो उसको वापस से, मुझे जैसे होता है ना कि मिट्टी अगर अच्छी है तो पौधा भी अच्छा निकलेगा, तो वो मिट्टी आपकी, कुछ मिट्टी में ऐसे फॉरेन एलिमेंट्स आए हैं जो नहीं आने चाहिए। नाउ मैं बॉडी में से वो निकालू कैसे? उसके लिए पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल और ये जो डाइट का, सप्लीमेंट्स का, जो भी आपके कुछ अगर नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जो आप लेते हैं कैंसर में हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि मेलाटोनिन है, कुर्क्यूमिन है, बीटा ग्लूकेन है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका कैंसर टाइप और आपकी कैंसर की प्रोफाइल क्या है वो। एंड विल पावर, इमोशनल वेलनेस प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड फिजिकल एक्टिविटी। और आप किस तरीके के लोगों से बात कर रहे हैं, जो आपको पॉजिटिविटी दे रहे हैं, जो आपको हिम्मत दे रहे हैं, या फिर जो आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं कि आपको कैंसर है। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं और ये सारी चीजें तो सॉरी मैंने बहुत ज्यादा टाइम लिया आपका आंसर करने में, बट आई थिंक ये दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अतुल जी, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, सबको ये क्वेश्चन आता है। सो थैंक यू। आयुष थापा, यू वांटेड टू शेयर समथिंग, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? वी विल बी, हम लोग ये सर्कल का रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी डालेंगे, जेनॉन को यूट्यूब चैनल पे, एंड ग्रुप्स में भी शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में। कुछ लोगों ने पूछा है कि दे ज्वाइन लेट तो उनको रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी, एंड मैं ग्रुप का लिंक वापस से चैट में शेयर कर रही हूँ ताकि आप सब भी इंफॉर्मेशन ले सके। सो आयुष एंड JM सुथार, यू वांटेड टू आस्क समथिंग? यस मैडम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। जो इजाजत हो तो मैं दिलीप मेवाड़ा जी से थोड़ी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, एक बस मेरे को एक क्वेश्चन था आपसे, अगर बात लंबी चलेगी तो मैं आपको डायरेक्ट उनका नंबर। नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत ही, ऑलराइट, ठीक है। जी बोलिए। मेवाड़ा साहब, हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? बोलिए। Can you listen to me now? यस मेवाड़ा साहब, मैं उत्तर गुजरात लीडर से बोल रहा हूँ, दिलीप जितेंद्र सुथार। ओके। मैं मल्टीपल माइलोमा का पेशेंट हूँ 2019 से। ओके। और अभी मेरा एम बैंड 42 आ रहा है अभी, और केमोथेरेपी ओरल चल रहा है मेरा। ओके। और मैं आपको अंबाजी छात्रालय में मिला था, लेकिन आपका नंबर मेरे को नहीं मिला। अंबाजी छात्रालय में मेरा सम्मान था, तब आप मिले थे और आपने बोला ही था कि कैंसर पेशेंट मेरे कांटेक्ट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके पास मेरा नंबर नहीं। ओके, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। 9867 3388 14। थैंक यू। मैं आपसे आपने फोन करो मुझे। हाँ जी सर, ओके थैंक यू। सेमिनार में नहीं था, हूँ तमने एकदम गाइड करीश, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू मैडम। Thank you so much, Dilip ji and Siddhar ji, and thank you everybody. It was a wonderful circle of lots of information, lots of learning. जैसे कि हम बोलते हैं कि healing circle is all about learning from each other's experience. आज हमने दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखा, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग क्वेश्चंस बिकॉज सिमिलर क्वेश्चन सबको होते हैं। एंड आई वांट टू से स्पेशल थैंक्स टू कृष्णा, बिकॉज कृष्णा आपकी वजह से आज हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे आ पाए, और उसकी वजह से कितने सारे ब्यूटीफुल सोल्स गॉट कनेक्टेड टू ईच अदर। सो क्रेडिट गोज टू यू, थैंक यू। एंड काफी इंस्पायरिंग एंड करेजियस जर्नी आपकी, एंड उसी से देखो कितना ज्यादा, इतने सारे यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स है बट स्टिल लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड wanting to do something कि मुझे क्या करना है, मुझे ठीक होना है। So thank you for being that inspiration. Thank you Anuradha ji for guiding people, and आपका बहुत rich experience है इसमें। So definitely का value add होता है, लोगों को पता चलता है, जैसे अभी पुष्पा जी ने पूछा।
So I'm sure she will get good guidance, good learning. क्योंकि उस वक्त नहीं कुछ पता होता है, धीरे धीरे पता चलता है. तो thank you for sharing. Thank you Dilip ji, and thank you Justina for hosting it so beautifully. And हम लोग फिर से मिलेंगे next Healing Circle Talks में. Krishna, anything that you want to share before we close the circle? So yeah, I was just like, listening to everyone, and there are many beautiful survivors even I have come in contact with after I, started sharing my journey. So everyone who's like, my only message would be that keep up the positivity, because in my case it has really happened, with positivity we've moved like mountains, you can say. So एक ही चीज बोलूंगी सबसे, that don't lose faith. It is very important to keep the faith up. And till today, even I जो भी मैं चीज करती हूँ ना, if whenever I have experienced myself, जब मैं negative हुई हूँ, things have gone downhill so drastically for me. So one thing, cancer, and even like after sharing, I've learned is that be positive. It is a conscious effort, so you'll have to do it very consciously. So बस वही होगा. And sorry, you got on mute. Just a second. Yeah, I'm requesting you to unmute. Yeah. Sorry. So yeah, I'm just saying that I'll keep everybody in prayers. I hope you all overcome this disease, and don't worry, सब ठीक हो जाएगा. Just be positive, and I'll wait for the day when you come and share your survivor journey. Yeah, lovely. Thank you, and thank you so much everybody. Just one last question we will take. Sorry, बस यही चाहते हैं कि सबकी query solve हो जाए. तो अभी एक question अभी आया है. So we'll just take one last question. Yeah, संदीप जी और सस्मिता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैम गुड इवनिंग. मैं सुष्मिता का हस्बैंड बोल रहा हूँ. मैम मुझे वो मिस्टर दिलीप कुमार मेवाड़ा जी का नंबर चाहिए जी. हाँ. मेरी वाइफ जो है, शी इज डायग्नोस्ड विद ओवरियन कैंसर. कौन सा कैंसर है? ओवरियन कैंसर, सी ओवरी. ओके, ठीक है. ठीक है सर, आप एक काम करिए संदीप जी, आप अपना नंबर भी यहाँ पे चैट में शेयर कर सकते हैं. तो और दिलीप जी, मैं आपको दिलीप जी का नंबर दे दूंगी, उनसे कनेक्ट करवा दूंगी. ठीक है मैम. थैंक यू. ओके, थैंक यू. ऑल राइट, थैंक यू so much everybody, and we'll see you in next Healing Circle Talks. Thank you.